Good morning, everyone, and welcome to the Student Orientation Session Series organized by Delhi Metropolitan Education. I am your host for this session, Rashri, and it is my pleasure to welcome you, the batch of BJMC 2025, to DME Media School. Delhi Metropolitan Education, DME, is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers education in professional fields of law, management, and media. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. With this, I am honored to extend the heartiest welcome to the students, the faculties, and the dignitaries present here today. Today, we have the privilege of being joined by RJ Mohit of Radio Mirchi, a prominent voice in the radio industry whose wit and charm have made him a favorite of the people. I would like to invite Dr. Parul Mehra, head DME Media School, to please come to the stage and facilitate our guest along with Ms. Garima Jain. Thank you, dignitaries. I would also like to invite Dr. Parul Mehra, head DME Media School, to please deliver her opening address to begin this session. Thank you, Rashri. Good morning, everyone. So, today is the day which is going to fill with fun, entertainment, and joy. Why? Because RJ is there in the house today. Give a huge round of applause. So, after gaining lots and lots of information, from yesterday about the TV news industry from two prominent anchors who have already visited us, Ms. Meenakshi Joshi from India TV and Mr. Ashok Shrivastava from DD News. Now it's time to have little of infotainment. I told you about the concept of infotainment. So radio industry belongs to that, where information has to be delivered with lots and lots of entertainment. Our guest of honor for today's morning is RJ Mohit from Radio Mirchi. And I was, when reading about him, I found him really very interesting person. Because when an engineer turns to be a radio jockey, it's going to be altogether a different thing. He has kick-started his journey as a radio jockey from a very famous channel, Radio Mirchi. In fact, I think such dynamic youngsters like Mohit is a motivation for all you budding journalists, because here you will understand that following passion or choosing your passion over anything can also give you a success in your life. So I would like to say you that these kind of people always give motivation to all of us for choosing your passion over anything. So also today I would like to take a moment for all of you that what lies ahead in this journey of media and entertainment for all of you. Now, if you are picking whether TV, radio, digital platform, or no matter any other stream of media, one thing is very clear, that it is just not about reporting the events. It's beyond that, because you're going to shape public perception. You are going to bring change in the society. So one thing that you always have to keep into your mind, that very soon you will be getting a sword to, shape the public perception, to develop a narrative in the world. So try to make best out of it, and I always say that kindly uphold on the integrity, value, and the choice of picking the right thing that you want to disseminate to the public. But specifically, if I talk about the radio industry from where RJ Mohit belongs to, this field is completely evolving. It has been, after the technological advancement backstage when we were talking, Mohit has mentioned that now radio industry doesn't work the way it used to be earlier. Earlier, we used to imagine or remember people or the radio jockey with their voice. We used to know them with their voice. Now it has become mandatory for them to be on the digital platform also. अब आप रेडियो जॉकी को देख के भी पहचान सकते हैं.
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आवाज़ से या पहचान पाते थे कि ये किसकी आवाज़ है. So now this industry has evolved rapidly because of the audience behavior also, what they are expecting. You have to prepare the content like this, but always be open to accept the new things that is coming to you, and try to learn different formats, try to learn different tools and techniques which are required to adapt into this university. One more time, I would like to thank RJ Mohit for being here with us, and have been here at a very important time of our session, because when we start our session we try to bring people from the different areas. Mohit belongs to radio industry, so ask as many questions you can ask and clear all your doubts if you have a choice to get into this industry of radio. Thank you all of you. Thank you Mohit for coming here. Thank you one more time. God bless. Thank you, ma'am, for your wonderful words. Now, to kick off today's session, I invite RJ Mohit to the stage. RJ Mohit has turned his passion for public speaking into a career with Radio Mirchi. With his humor, wit, and charm, and his unique voice, he's become known for his charisma. Apart from radio, his voice has found an audience in every platform imaginable. His journey is all about creating experiences and connecting with people. So please welcome him with a huge round of applause. करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां. क्या बात है, बहुत बढ़िया. नजर ना लगे. हाय, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे. जोश कम लग रहा है, अभी थोड़ा बातें करते हैं. सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत वेलकमिंग हो, बहुत प्यारे हो. आते मुझे पहली बार किसी ने बिस्किट खिलाए कॉलेज में. थैंक यू सो मच सर पहले उसके लिए. और इतने करारे बिस्कुट हमारे घर में आ जाओ, ऐसे सॉगीनेस वाले होते नहीं, रसीले से होते हैं, सीले हुए वाले बिस्किट होते हैं. बट क्या कहते हैं, मैं सिर्फ आज आपसे, मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मुझे कोई आपसे ज्ञान नहीं बांटना है. मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे पास वो ज्ञान है ही नहीं आप लोगों को देने के लिए. सबकी अपनी एक जर्नी होती है, आप लोग वो खुद ही निकल के उसे अचीव करने वाले हैं, और मैंने अभी तक ऐसा कुछ अचीव करा नहीं है जिसके बारे में आपको बताऊं. ठीक है, बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं इस सेशन को. मैं जस्ट आपसे बातें करूंगा, थोड़ा सा खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे. एंड आई जस्ट लव द वे आप जैसे बात कर रही थी. आप साउथ दिल्ली से हो? ओके, ऐसे क्यों कर रहा था फिर आपने? गुड मॉर्निंग ऐसे कर दिया आपने. आई लव द वे, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है. ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये होना चाहिए. मैं बिल्कुल देसी बंदा हूँ, मुझे आज तक नहीं आया है. बट थैंक यू सो मच. ऐसा लगा अचानक से कोई कोरियन बंदी आके बैठी. बहुत बढ़िया यार. बट एक बार जोरदार तालियां. यू नीड गट्स ऐसे एंकरिंग करने के लिए, एमसिंग करने के लिए. मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा, बट आई लिटरली वॉन्ट ये एक्सेंट मेरे अंदर है. मैम ग्रेट. आप में से ऐसा कोई है जो एंकरिंग करना चाहता है आगे? ठीक है, बहुत बढ़िया. कोई नहीं है? कोई नहीं है. वेरी गुड. सब पैसा बर्बाद करने आए हैं. आप करना चाहते हो मेरे भाई? यस मैम. जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. स्टैंड अप करने का किसी शौक है? स्टैंड अप कोई बनाना चाहता है? बहुत खुल के बता सकते हैं. ठीक है मेरे भाई, तुझे जेल जाना है, ठीक है, और आपको जेल जाना है, साथ में चलेंगे भाई. मेरा भी एक बहुत बड़ा पैशन है. आई डू ओपन माइक्स ऑल्सो एंड आई लव दिस, जो भी ये फील्ड है. अब मेरी प्रॉब्लम, अच्छा पहले अपने बारे में बात करूं, बता दूं आपको अपने बारे में क्या हूं. पहले तो मैं विशाल सर को थैंक यू करना चाहूंगा कि इतने प्यारे खूबसूरत बच्चों से मुझे मिलवाया. ठीक है, विशाल सर इतने प्यारे हैं. आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, वो मस्त है, बहुत कमाल है. मतलब एक तो ना, ये स्माइल करते रहेंगे. ठीक है, आप कुछ शैतानी करो, स्माइल करते रहेंगे, एंड में निकाल देंगे पेपर में, अब हंस तू. ठीक है, आप कितने ही मजाक करते रहो, सर कहेंगे करता रहे बेटा तू, जब मेरे पास आएगा ना नंबर देने की बारी, तब मैं तुझे बताऊंगा. बट सर की एक मैं आपको खूबी बताता हूँ, और ये कोई ऐसा नहीं है सर ने मुझे इन्वाइट करा तब मैं आपको बोल रहा हूँ. ये आवाज सही आ रही है अब तक? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ा फट रही है. हाँ थैंक यू. आते कमी निकाल दी, और तो वाली खूबी है. बहुत बढ़िया. ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ. विशाल सर की एक खासियत है, मैं भारतीय विद्या भवन में मैंने पीजी करा है. सो बेसिकली जैसा मैम ने कहा, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पे पीजी करने आया था. मैंने कहा थोड़ा सा जानते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सेल इन एंटरटेनमेंट फील्ड. ठीक है, ऐसे स्टेज विस्टेज का बड़ा शौक चढ़ गया था मुझे. सो मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बट पता नहीं इस माइक में क्या जादू होता है, मैं एकदम से बोलने लग जाता हूँ. मेरी चीज़ें वो बहुत हैं.
अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा, बहुत लोग सोचते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसे 4 जने अगर बैठे उनमें बात नहीं कर पाऊंगा, सो डू आई डिजर्व टू बी एन आरजे, या मैं एंकरिंग कर पाऊंगा। बहुत डिफरेंट है, बहुत सरल है, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएं जो एक्सट्रोवर्ट हैं। सो कभी भी अपने पे डाउट नहीं करना, बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, बट ये माइक और स्टेज का जादू होता है, वो चंद तालियों का जादू होता है। जब आप बोलते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है और आपको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं बहरहाल ज़्यादा बोलता नहीं, तो मैं बैठ जाता हूँ, बिकॉज काफ़ी दूर से ड्राइव करके आया हूँ, मैं अब थक चुका हूँ। नॉर्मली आपसे बात करूँगा। सो मुझे ऐसे ज़्यादा बात नहीं करना आता था टीचर से, ना अपने दोस्तों से, ठीक है। तो सर क्या है, मेरा सर से भी बहुत कम इंटरेक्शन होता था। अब हमारे यहाँ एक एक्टिविटी होती थी जहाँ पे हम ऋषिकेश में जाते थे। वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि आप अपना खुद का जो है न्यूज़पेपर लॉन्च करो, अपना खुद का रेडियो शो ड्राइव करो। उसमें एक ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बनता था, राइट सर, ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव होता था। अब उसमें लड़के बड़े तेज होते हैं, ठीक है। सर के पास जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जैसी वो एक्टिविटी पास आने लग गई, सर को एक्स्ट्रा गुड मॉर्निंग बांटने लगे, गुड मॉर्निंग सर। उन्हें लगा कि ये सर सारा हेड कर रहे हैं तो मुझे ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। और मैं बिल्कुल ऐसे शांति रहता था, अपने दोस्तों में मस्ती करता था, मस्ती खोड़ता, बैक बेंचर हूँ तो शायद टीचर्स के सामने वो मजाक वगैरह नहीं करूँगा, लेकिन पीछे करता रहता था। सर ने जैसे ही एक दिन पहले हम ऋषिकेश जाने वाले थे, सर ने मुझसे बुला के बोला, मतलब बहुत बच्चे थे जो बढ़िया पढ़ने में, बोलने में बहुत अच्छे, मैं पीछे ही रहता था, बट पता नहीं सर ने क्या देखा। सर ने बोला इधर आ, ग्रुप प्रेजेंटेटिव बनेगा। मैंने कहा है, पहले तो बताओ इसका मतलब क्या है, आगे बात करेंगे। सर ने मुझे उस दिन अचानक से ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। मुझे भी नहीं पता था कि ये मुझे क्यों दिया है, बिकॉज मैं कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ भाई, बट पता नहीं, एक होता है टीचर गुरु, इसलिए हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पहचान जाता है कि यार ये लड़का तो अपना बेड़ा गर्क करेगा, लेकिन जब ये अच्छा करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें याद करेगा, और जब ये कॉलेज आएगा इसे बिस्किट खिला देंगे एक। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। जस्ट लव यू सर। आप टीचर्स ऐसे होते हैं, ये सिर्फ विशाल सर की बात नहीं है, जितने भी टीचर्स होंगे वो कहीं ना कहीं पहचान जाएंगे, भले ही नादान हो, शैतान हो, इसको कौन सी कब अपॉर्चुनिटी देनी है। और द बेस्ट पार्ट इज वो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव आपने बनाया, उसके बाद वो मैं जीता भी था, आई थिंक, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ये छोटी छोटी चीजें हमेशा से याद रहती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने बारे में। मेरा नाम मोहित है, जैसा आपको मैंने बताया। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली वैसे मैं पहाड़ी हूँ, यानी पहाड़ी इन द हाउस, कोई नैनीताल वगैरह से, बहुत बढ़िया भाई। तो आप वहाँ रहे भी हैं आप? तो यहाँ क्या अभी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं आप? मम्मी पापा शिफ्ट हो गए। तो मेरा फंडा बहुत अलग है, मैं पहाड़ से हूँ, नैनीताल से हूँ, बट आज तक वहाँ नहीं गया। बेसिकली ये मेरे मम्मी पापा बड़े नोटी, दोनों ने अपना हनीमून वहाँ एंजॉय करा, मुझे फेंक दिया मेरठ में आके। तो मैं मेरठ में निकला हूँ बेसिकली 1995 में, 1995 में मेरा बॉर्न है, और हनीमून वहाँ एंजॉय करके इन्होंने मुझे निकाल दिया मेरठ में। अब आज तक मैं पहाड़ों में कभी नहीं गया हूँ यार, मतलब कभी नहीं एंजॉय करा, कभी नहीं गए। बट मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति, नेचर और ये जितनी भी आपकी आसपास की चीजें, आपको रियलाइज भी नहीं हो गए, जो लड़की भाई आपके बगल में बैठी है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही हो, ठीक है। रोल प्ले से गलत मत समझियो, पहले तो शांत हो जा। स्माइल इसकी बहुत तेज है। अच्छा, पहले जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप सबके यहाँ पर हैं? अब सर कान बंद करो, आप लोग आंख बंद करो, टीचर्स अब बताना, किसी का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या बात कर रहा है यार, ये लड़का मुझे ऐसी आंख से देख रहा है जैसे मैं बनवा के जाऊंगा। नहीं भाई, मैं नॉर्मली बस पूछ रहा हूँ। तुझे लग रहा है मैं बनवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी खुद की आज तक नहीं बनता। सो द थिंग इज भाई, इंजीनियरिंग मैंने करी है, स्कूलिंग मैंने करी है, पढ़ाई में बहुत अच्छा, बहुत कमाल बच्चा, ठीक है। 10 तक 90+, 95+, ऐसे पेपर वेपर में फोटो भी आई थी। 12th में मैं थोड़ा सा बिगड़ गया था, बिकॉज वहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत संगत जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप लोग के कोई बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे? किस किस का बेस्ट फ्रेंड है? एनीवन? यही है क्या आपकी बेस्ट फ्रेंड? तो तू इधर आ जा, एक काम कर, पहले तो इधर आ जा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मान भी गया तो बहुत अच्छा है। अंदर से कौन सी गाली निकल रही है इस वक्त मुझे देख के? बेस्ट फ्रेंड वो भी है, अभी तक कह रहा था दोस्त भी नहीं हूं, अब बेस्ट फ्रेंड। थोड़ी देर में बोलेगा हाँ सर गर्लफ्रेंड है थोड़ी थोड़ी। सर अरे मजाक कर रहा हूं यार भाई, एंजॉय करो यार, कॉलेज लाइफ है। सो मैंने स्कूलिंग करी, इंजीनियरिंग करी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वहाँ पर लड़कियाँ होती नहीं हैं, ठीक है, हम लड़के आपस में, और जब लड़के आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी जो होती है ना चीज़ें, वो सब एक्सप्लोर करते हैं लाइफ की। आई थिंक दोस्त, लड़कों की जो दोस्ती होती है वो बेस्ट होती है, ये सारे लड़के मानते होंगे भाई, ठीक है। लड़कियां बड़ी अब चिढ़ जाएं कितना बकवास कर रहा है,
हमारी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्ती, बट नहीं, लड़कों की दोस्ती आई थिंक बहुत खूबसूरत होती है। आप बहुत याद करने वाले हो, जितने भी आपके दोस्त हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक अलग माहौल होता है, ठीक है। अब मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैं दुविधा में फंस गया कि यार कर तो लिया, मैकेनिकल इंजीनियर भी बनना है, मुझे कोई आइडिया नहीं गाड़ी का, ये वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जो आपका कॉलेज भी आपको ऑफर करता होगा, सबका कॉलेज ऑफर करते हैं, वो डिफरेंट फेस्ट होते हैं, ये माइक होता है, जैसे कहाँ गई वो वाली लड़की जो एक्सेंट मार रही थी, कहाँ पर, हाँ वो बढ़िया, देखो ये चीज़ें होती है ना जहाँ पर आप एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर मुझे पता चला अच्छा एंकरिंग करके कोई चीज़ होती है, कॉलेज फेस्ट होता है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ कर लिया, पहले से ही मुझे करना था कि यार मुझे टीवी करना है, ठीक है, मुझे ऐसा कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में रहना है। वहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया नहीं करना तो यही इसी माइक के साथ करेंगे जो भी करेंगे आगे अपनी लाइफ में। सो वहाँ से एंकरिंग स्टार्ट करी, इंजीनियरिंग हो गई, करनी थी क्योंकि मम्मी पापा ने अब कोर्स कराया था। ऐसा भी होता है कि नहीं यार एक जॉब भी चाहिए, तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत ख़राब, मेरी बहुत ख़राब, और आज भी ख़राब है, ठीक है। और वहाँ पर अब मैंने अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए जितने भी प्रयत्न हैं वो करना शुरू कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे है किसी की इंग्लिश जिन्हें लगता है ख़राब है, मतलब आप बेझिझक बता सकते हो बहुत ही ख़राब है क्या, फिर भी लड़की के साथ बैठा है, थोड़ी तो शर्म कर। इंग्लिश खराब होती है ना, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। और किस किस की खराब है, बहुत बढ़िया, ऐसा जिसे लगता है भाई बेड़ा गर्क है मेरा, कुछ नहीं हो सकता मेरा इंग्लिश में, दिमाग। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहा है, दिमाग में अच्छी है, जैसे ही बोलने में आते हैं कुछ और निकल जाता है। सो मेरी ना दिमाग में भी अच्छी नहीं थी भाई, ठीक है। तो मेरी ना दिमाग में अच्छी थी ना बोलने में अच्छी थी। मैंने 1 महीना खुद को दिया, ठीक है, 1 महीना खुद को दिया, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी बेटर हुई। अपने वो कहते हैं ना कि खुद को कमरे में बंद करके तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं यार इंटरव्यू तो निकालना है, तो मेरे ऐसे 4-5 बैक टू बैक इंटरव्यू जो है रिजेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। सो ऐसे मैंने इंटरव्यूज 2-3 क्रैक करे, फिर मेरी बेंगलोर में जॉब लगी। बेंगलोर में मैंने आई थिंक 2 महीने करा, फिर मैंने पुणे में जॉब करा, और वहाँ पर ऐसा हुआ अब छोड़ दे, ये तुझे करना ही नहीं है। तो वहाँ पे सेल्स की जॉब करी 1 साल, आई थिंक मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब करी होगी, और वो सब छोड़ के वापस आ गया दिल्ली आ गया। अब क्या करूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहना आसान होता है ना कि एंकरिंग करनी है, इससे आप पैसा कैसे कमाए। द थिंग इज, ये आप पैशन स्कूल में कॉलेज में फॉलो कर सकते हो, बट जब आते हैं कि मॉनेटरी आप इसको कैसे कन्वर्ट करो, ठीक है। पैशन को अगर आप, मैं बता रहा हूँ दुनिया के सबसे लकी इंसान हो आप अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, उससे खूबसूरत बात कोई है ही नहीं। खूब आप खुश रहोगे, मतलब मजा आएगा, पैसा भी आ रहा है, भले ही कम है बट अच्छा लगता है। तो अब ना कोई शोज हैं ना कुछ हैं, सो जस्ट एक एडवाइस है, जो लोग भी यहाँ पे एंकरिंग की दुनिया में कुछ करना चाहता है, ठीक है, स्टेज की दुनिया में कुछ करना चाहता है, जैसे वो मैम अभी एंकरिंग कर रही थी, ठीक है, आप ये लोग अपनी वीडियोस जो है संभाल के रखो, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बीइंग एन एंकर, टीवी वाला नहीं, ठीक है, ना मुझे उस फील्ड में जाना है, टीवी में एज इन न्यूज़ फील्ड में मुझे नहीं जाना है। तो बट अगर ऐसे कोई कैजुअल रियलिटी शोज वगैरह होते हैं, ऐसा कभी मौका मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड ट्राई। बट अगर आपको ऐसे मेरी तरह ही कुछ स्टेज में, ठीक है, या फिर बहुत ऐसे फॉर्मल इनफॉर्मल शोज करने हैं, ये वीडियोस आपकी बहुत काम आने वाली है। बिकॉज जब आप किसी को बताते हो मैं एंकर हूँ, वो सीधा बोलते हैं अपनी प्रोफाइल दिखाओ। सो फॉर ऑल ऑफ यू जो भी ऐसे एंकरिंग वगैरह करना चाहते हैं, और कॉलेज एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे आपको बढ़िया क्वालिटी की वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे एक वो भाई यहाँ पे बना रहे हैं, एक ये यहाँ भाई यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे फॉर्मेट की वीडियोस मिल जाएंगी, तब आपको ऐसे काम आता है। तो अब चाहे वो वेडिंग एंकरिंग हो, कॉर्पोरेट एंकरिंग हो, कॉलेज शोज हो, ये सब मैं इसी वजह से कर पाया क्योंकि मैंने कॉलेज में करा था। तो अब देखो मैंने स्ट्रगल उस टाइम पे ये करा था, स्ट्रगल तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरी कॉलेज की वीडियोस मुझे कैसे मिलेंगी। सो नौकरी लग गई, कॉलेज से 2 साल हो गए, उसके बाद मैं कॉलेज में वापस गया, मैंने कहा मेरी वीडियोस दे दो। तो आपको मैं अपनी जर्नी के थ्रू ये बताता रहूँगा कि आप ये चीज़ें पकड़ के चलना, कि आपने आज शो करा है, पीछे पड़ जाओ सर के, सर मुझे ये वीडियोज़ चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कल आपको पैसा कमाने में आपकी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। जब आपको एक शो मिल जाता है ना लाइफ का, एक शो कि यार चल इससे मेरा पैसा आने वाला है, फिर वो आपको बूस्ट आ जाता है कि मैंने एक शो कर दिया, अगला शो भी मुझे मिलने वाला है, उसकी भी फिर वीडियो बनाओ, ऐसे ऐसे करके आपको शोज मिलते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कोई भी आपका स्टेज टाइम है, आप उस वीडियो को डेफिनेटली लो, सर ये दिलवा देना आप मेरी, ठीक है, ये मुझे भी चाहिए होगी। तो ऐसे आप भी अपनी वीडियोस मांगो, ठीक है, आगे बढ़ो, चीज़ें करो। उसके बाद बात आती है, स्टेज हो गया, मेरे दिमाग में हमेशा से था मुझे एक बार रेडियो भी डेफिनेटली ट्राई करना है,
क्योंकि बचपन में मैथ्स के सवाल हो गए, साइंस के सवाल हो गए, बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, मैं ना ये गाने सुन के पढ़ के करता था, मुझे बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि आरजे आता है, बोलता है, ठीक है, भले ही 2 मिनट बोलेगा, बढ़िया प्यारी सी आवाज़ है, लेकिन उस 2 मिनट में हमें हंसा जाएगा, कुछ ऐसी बात कर देगा जो बहुत रिलेटेबल होगी, मुझे वापस वो 90s के ज़माने में नॉस्टैल्जिया वाला फील हो जाएगा। सो मुझे हमेशा से ये था आरजेइंग तो आई वुड हैव टू ट्राई, कुछ भी हो जाए मुझे एक बार करनी है। तो कोविड आ गया, मेरे शोज़ बंद हो गए, फिर मैं जैसा आपको बता रहा था कि मैंने कॉलेज शोज़ वगैरह ये सब शोज़ करना शुरू हो गए, मॉनेटरी बेनिफिट होने लग गया। तब जब ये कोविड के आने से सब कुछ बंद हो गया, तो दोबारा एक बार फिर से लाइफ गिर गई और घुस गई, दोबारा से समझ नहीं आया क्या करूं। तब मैंने ट्राई करा ये आरजेइंग, ठीक है। मैंने तब रेडियो ट्राई करा। सो सबसे पहला चांस मुझे मिर्ची नागपुर में मिला था। यहाँ मैं दिल्ली में था और मुझे नागपुर में मिर्ची लव करके एक ब्रांड है, आप लोग उसे गाना ऐप पे भी सुन सकते हैं। सो उसमें एक हमारा बहुत कमाल का स्पार्कलर भी आता है रिलैक्सिया करके, सो वो भी हम किया करते थे। सो सबसे पहले मैंने मिर्ची लव करा, फिर मुझे ऐसा था कि नहीं यार कोई एक ऐसी बड़ी सिटी में अगर अपनी सिटी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज वो तो टियर 2 सिटी थी। अगर आपको टियर 1 सिटी में एज अ आरजे मौका मिल रहा है तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, जैसे सेलेब इंटरव्यूज़ हो गए, ठीक है, किसी की कोई मूवी आ रही है, मूवी प्रमोशन हो गए, आपको उसे लॉन्च करने का मौका मिल रहा है। सो मुझे हमेशा से वो करना था। और टियर 2 में ऐसे वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते नहीं थे, तो मैंने दिल्ली के लिए ट्राई करा बहुत। फिर मैं आपको अभी थोड़ा सा ऑडिशन का प्रोसेस भी बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी को आरजे बनना है, इस फील्ड में जाना है, थोड़ा सा आपको जस्ट पता चले, जर्नी आपकी खुद की है, मैं जस्ट थोड़ा आपको बताऊंगा। सो मैंने दिल्ली के ट्राई करा एंड फॉर्चुनेटली भगवान की दया से मेरा यहाँ पर हो गया। अब हो गया, मैं बहुत चंचल माइंड का हूँ, मुझसे एक चीज़ 1 साल से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा झेली नहीं जाती है। सो अब जब मैं आरजेइंग करने लगा, यहाँ पे मुझे मॉर्निंग शो मिला। सो द थिंग इज, आपने नवेद भाई को तो सभी ने सुना होगा, नवेद है ना, तो उन्होंने अब रेडियो को क्विट कर दिया था। उनका सिर्फ एक स्पार्कलर आता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, मुर्गा, ठीक है, मुर्गा बनाते हैं वो। सो उन्होंने सिर्फ वो अभी रेडियो पे वो करते हैं। सो नवेद भाई ने छोड़ा, भगवान की दया से इतना बड़ा शो, मॉर्निंग शो मुझे तब मिला था एंड मैंने 1-1.5 साल वो शो करा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग शो मैंने और करा था रेडियो पे। आई डोंट नो इससे पहले कभी किसी ने ऐसे ट्राई करा होगा उस शो को, क्योंकि हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने डिज़ाइन करा था। थोड़ा सा मैं आपको रेडियो के बारे में बताता हूँ। सो उसमें क्या था, हम लोगों ने एक हॉरर शो डिज़ाइन करा था, रात के 12 से 3 वो आता था। उसमें दिल्ली की ऐसी भी कोई जगह जो बहुत बदनाम है कि यहाँ पे भूतिया चीज़ें होती हैं, तो मिर्ची भूतियापा करके वो हमने शो करा था। मैं लाइव जाता था वहाँ पे अपनी टीम के साथ, टीम में मेरा एक बंदा था, वहाँ पे हम जाते थे, एक एक्सपर्ट को लेके जाते थे, उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते थे, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट करते थे कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर नहीं है। तो हमने बहुत ढूंढा, आई थिंक 16 से 18 जगह हमने दिल्ली की ऐसे सर्च करी। फिर एक दिन मैंने अपने घर में दीदी को बिना मेकअप के देखा, मैंने कहा ये री चुड़ैल तो मैं कहाँ ढूंढने में लगा हुआ था। सो क्या कहते हैं, बहुत कुछ, एक ऐसा शो जो मैं भी बहुत, मुझे चैलेंजिंग लगा, बिकॉज मम्मी को, बिकॉज हम पहाड़ से यार, हमारे यहाँ बहुत मानते हैं ऐसे भूत चिपट जाता है, चुड़ैल चिपट जाती है, ठीक है। हमारे, आप भी पहाड़ से हो क्या? आप भी पहाड़ से हो, लग भी रहे हो। कहाँ से हो मैम आप? पिथौरागढ़ से हो? अरे वेरी गुड। मैं हूँ ताकुला से। बहुत बढ़िया। तो आप क्या जोशी हैं, क्या है, पंथ हैं आप? वेरी गुड। कुमाऊनी या कुमाऊनी, वेरी गुड। इधर आओ। अभी आप बोल देते ना गढ़वाली, मैं इधर से निकल जाता। ये कुमाऊनी गढ़वालियों का थोड़ा सा रहता है क्लैश आपस में, ठीक है। सो थैंक यू मैम। तो द थिंग इज कि हमारे यहाँ बहुत होता है कि चुड़ैल चिपट जाती है। मम्मी बड़ी डरी रहती थी जब मैं 3-4 बजे घर आता था रात को, कि आज ये फिर किसी को ले आया होगा अपने साथ। मेरे दिमाग में ऐसा है कि मम्मी काश लड़की सोचती, बट वो तो चुड़ैल की बात सोच रही हैं, ठीक है। सो कभी ऐसा हुआ नहीं है, और बिकॉज ये मैंने चीज़ एक्सप्लोर करी। अब पता नहीं मेरी राशि में है नहीं। आप में से कोई मानता है ऐसे भूत वूत एग्जिस्ट करते हैं? आप मानती हैं? आपके तो साइड में भी बैठा हुआ है मजाक कर रहा हूँ भाई आप मानते हो भाई? और कौन मानता है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं? बहुत बढ़िया, इस पे सवाल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप मानते हो? किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत खुल के बताओ, माइक में आपको दे रहा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये स्कूल में हुआ था। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड उस टाइम उसका वी हैड अ नाइट स्टे, ठीक है। वी हैड अ नाइट स्टे एंड रात में आई वाज सपोज्ड टू गो टू द वॉशरूम। बहुत बढ़िया, ठीक है। आई आस्क्ड द मेड एंड वो शी गाइडेड। मजा आ रहा है, बस इसे हिंदी में करना मैंने बताया ना, अभी मेरी इंग्लिश कमजोर है। बहुत अच्छा बोल रहे हो, हिंदी में बोलो। मैंने मेड से पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है, उन्होंने मेरे को वो वहां तो आप अपने घर में जब यूजुअली वॉशरूम जाते हैं आप मेड से परमिशन लेते हो? बहुत बढ़िया। स्कूल में अच्छा स्कूल में, ठीक है। एंड देन
इतनी बेवकूफ सी थी, मैं निकल गई बाहर वॉशरूम के बाहर, मैं स्कूल के कॉरिडोर्स में घूमने लग गई। डार्क हो रहा था, इट वाज लाइक 1 AM 2 AM का ही टाइम था, बहुत रात हो रही थी। ठीक है। मैं एक रूम खुला हुआ था, मैं उस रूम में चली गई एंड उस रूम में लाइक देयर वाज अ जो चेयर होती है ना जिसमें बुड्ढे लोग बैठ के झूलते हैं, हाँ। उस चेयर पे वो चेयर चल रही थी, अपने आप ही हिल रही थी। ठीक है। एंड उसके बाद फिर हवा चली, फिर मैं बाहर निकल गई। फिर अगले दिन जब मैं स्कूल आई, वो रूम था ही नहीं उधर। मैंने कहा मैं हेलुसिनेट कर रही थी कुछ। हाँ, ये हुआ है एक्चुअली में यार, और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और डेफिनेटली करती हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ बिकॉज लोग कहते हैं तेरा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, राशि में किसी किसी के नहीं होता है दिखना। किसी को और दिखा है यहाँ पे एक्चुअल में भूत दिखाओ? किसको? मेरे को स्लीप पैरालिसिस के टाइम आपको भी स्लीप पैरालिसिस? तो मेरे साथ बहुत हुआ है, कुछ नहीं है वो। आप बताओ, आपको दिखा है? क्या हो गया? शीशे के सामने खड़ी हो गए तो मजाक कर रहा हूँ भाई। सुनो भाई, मेरी बात का ना यहाँ कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आ जाया हूँ, मान भी लोगे तो कुछ होना नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ मजे मजाक करने आऊँ। मेरा मजाक बनाओ, अपना मजाक बनाओ, बहुत मजा आएगा। सिर्फ हम ना हंसने वाले हैं आज यहाँ पे, और कुछ नहीं करने वाले। आपको दिखा था, मजाक कर रहा था, मैं दिल पे मत ले लेना। आया था बड़ा, अपने आप को समझ रहा था, बोल के चला गया मम्मी मैं इतनी बुरी हूँ क्या, और मम्मी ने वहां पे हाँ बोल दिया। फिर ये रिकॉर्ड तो नहीं हुआ? ठीक, क्या करूं? माइक नीचे से पकड़ो, ठीक है सर। आज भी डांट दिया थोड़ी, तो आज तो मत डांटो यार, कॉलेज में बहुत डांटा है आपने। माइक नीचे से पकड़, ठीक है। हाँ जी मैम बताइए। आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं जा रही थी, तो ठीक है। पापा थे और मैं थी, तो फिर उसके बाद चाचा भी थे। फिर उसके बाद पापा को नींद आ रही थी, तो पापा पीछे गए, फिर चाचा आगे आए। अरे फिर उसके वाह, बाद ऐसा होता है मैं आपकी थी। फैमिली में? बहुत बढ़िया। अरे तो कार चलाने में हाँ, ऐसे ऐसे बहुत होता है बढ़िया, ना। तो बहुत फिर उसके बाद मैं बैठी हुई, तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सडनली आई सॉ कुछ तो ऐसा वाइट सा कार के पास से ऐसे गया, एंड इट वाज वेरी क्लियर। मैंने पूछा चाचा से आपको कुछ दिखा, लेकिन वो मेरे को पूरा देख रहा था, प्रॉपर देख रहा था। आई सॉ इट। एंड देन उसके बाद मैं लखनऊ गई, दैट वेयर आई लिव, लाइक वहाँ पे मौसी के घर। एंड उधर जस्ट अभी मेरे मौसा का कुछ हुआ था, लाइक ही वाज नॉट देयर। तो फिर उसके बाद आई सॉ कि रात में 3 बजे एकदम से रिंग बज रही है इन द हॉल। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो कुछ मतलब हो ही नहीं रहा। फिर मैंने उसको पिक करके उठा के फिर ऐसे रख दिया कि क्या पता गलती से हो गया। बट देन अगेन इट हैपेंड, एंड फिर मेरे को एकदम से लगा कि कुछ तो मेरे पीछे से एकदम से गया। एंड इट वाज कि मेरे पीछे एकदम कोई लंबा सा 6 फुट का कोई खड़ा था। अच्छा। एंड आई वाज सो स्कैर्ड। आपने हाइट नाप ली है, बहुत बढ़िया करा। हाँ, बिकॉज आई एम स्मॉल, तो मेरे को कुछ लग रहा था कि हाँ इतना ऊपर से कुछ तो देख रहा है मुझे। एंड आई वाज सो स्कैर्ड, मैं भाग के अंदर चली गई। सो इट वाज कि शायद एग्जैक्टली। हाँ, कुछ कह रहा है मेरे भाई, बोलो ना। क्या आ गए? हाँ, दैट इज ट्रू। यही लग रहा था मुझे कि मौसा जी 6 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, तो मौसा जी हैं बहन वो। तो आई वाज कि मौसा जी को भूत बना दिया हैं? और मौसी इस बात को मानेगी, हाँ भूत ही है ये आदमी, ठीक है। सो जस्ट हाँ, ऐसा होता है। आप में से यहाँ कोई कह रहा था किसने देखा है, किसी ने और कुछ भूत वूत देखा है? किसी ने नहीं अपना फ्रंट कैमरा ओपन नहीं करा। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इट जस्ट दैट कि अभी तो हमने मजाक में बात कर ली, बट क्या कहते हैं, जिसके साथ ये रियल में होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरे होते हैं। तो मेरी मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी। और एक दिन मुझे भी लगने लगा यार कोई मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आया है, ठीक है। तो मुझे आज तक ऐसा फील या मैंने कुछ ऐसा, हमने नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक बार उस पता नहीं, मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें कैप्चर करी थी। और हमने वो रेडियो पे शो भी करा था, ऑन एयर भी गया, सब कुछ चीज़ें करी थी, बट ऐसा कुछ बहुत मेजर हमारे उसमें नहीं आया था। सो मेरा पूरा उद्देश्य आपको ये बताने का मतलब है कि रेडियो पे ऐसे हॉरर शोज कभी, आई थिंक किसी ने बहुत 10-1 साल पहले ट्राई करे होंगे, मैंने दोबारा से ऐसा ट्राई करा था और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। एंड ये चीज़ है, जब आप इंडस्ट्री में घुसते हो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। अब मेरा जो सवाल है आप लोगों से, कितने लोग, बिकॉज बीइंग एन आरजे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई है जो रेडियो फील्ड में अपनी जगह बनाना चाहता है? नॉट सिर्फ क्या कहते हैं उसमें रेडियो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, किसको रेडियो जॉकी बनना है? ऐसा कोई है? ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आपको एक बनना है, ठीक है। और कोई यहाँ से? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो भाई, रेडियो का थोड़ा सा आइडिया आपको, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं अंदर, या सिर्फ एक रेडियो जॉकी होता है? सिर्फ रेडियो। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि हंसी फन के साथ साथ थोड़ा सा क्लियर भी करते चलेंगे कि रेडियो के अंदर की दुनिया क्या है। सो व्हेन आई वाज इन भारतीय विद्या भवन, जब विशाल सर हमारे साथ थे, जब वो हमें पढ़ाते थे,
रेडियो की जो असली नॉलेज है, ठीक है, वो हमें मिली रेडियो के अंदर जब मैं घुसा। सो हमें भी यही लगता था कि यार सिर्फ एक रेडियो जॉकी होता है। कौन से ईयर में हो अभी आप? फर्स्ट ईयर में हो। इसलिए क्योंकि हमें तो सर ने पहले ही क्लियर कर दिया था, हम भी फर्स्ट ईयर में जब थे हमें भी यही लगता था सिर्फ एक रेडियो जॉकी होता है। बट जैसे जैसे हमारी क्लासेस हुई, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें पता चला सिर्फ एक रेडियो जॉकी नहीं होता, एक बहुत बड़ी टीम होती है। मेरे साथ हमेशा जो मेरा शो डिज़ाइन करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, आज किस मुद्दे पर हम दिल्ली से बात करने वाले हैं। सो एक बहुत बड़ी पावर मुझे रेडियो जॉकी के अंदर होती है। अगर मैं सुबह उठा हूं और मुझे मूड डिसाइड करना है दिल्ली का, जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं रेडियो शो को, अगर मुझे वो डिसाइड करना है कि यार आज थोड़ा सा इन्हें गुस्सा दिलाते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करके जिससे ये सोसाइटी जगे, ठीक है, उनको गुस्सा आए। सो एक ये रेडियो जॉकी के ऊपर ना एक पावर होती है। रोज सुबह जब वो उठता है, वो शो डिसाइड करता है अपने प्रोड्यूसर के साथ, फिर एग्जीक्यूट करता है कि आज दिल्ली का मूड मैं डिसाइड करूंगा कि आज इन्हें गुस्सा दिलाना है या फिर आज इन्हें हंसाना है या थोड़ा इमोशनल एंगल पे खेलना है। ये लोग हम डिसाइड करते हैं। दिस इज द पावर। आपको बहुत अच्छा एक वो सुकून आता है कि भाई आज सिर्फ जो है हंसी की बात होगी या फिर आज जो है असली मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है। और रेडियो एक ऐसा मीडियम है, आप एंकरिंग की फील्ड देख लो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़, जहां पर 6 बजे एक घमासान युद्ध चल रहा होता है, ठीक है, और वहां पर एक मुद्दे को उठा के लंबा खींचते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, कई सालों तक खींचते हैं। मुझे कोई वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं। अब मैं थोड़ा सा खुल के अगर बात करूंगा उनको लगेगा यार ये क्यों ऐसे न्यूज़ के बारे में ऐसा बोल रहा है। बट व्हाट आई फील इज कि न्यूज़ बहुत चेंज होती चली जा रही है। जब हम अपने भवन में थे, सर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी, विशाल सर ने एंड रमेश सर, एंड दोनों को बहुत एक वो है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसे कॉलेज में पता चली कि हमें पता चला कि यार अच्छा ये पर्सपेक्टिव भी होता है। तो न्यूज़ हमें बोलते थे सर आज पढ़ो, आज आप लोग बोलोगे न्यूज़ को, वो कहते थे अपना ओपिनियन मत दो, सिर्फ न्यूज़ बताओ अपनी, ठीक है, जो है। बट आप आज देखो क्या चल रहा है न्यूज़ के दुनिया में। 6 बजे तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे आपको मज़ा भी बहुत आता है, कॉमेडी बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। ज़्यादा कॉमेडी आपको आजकल जो है वो न्यूज़ की दुनिया में देखने को मिलेगी, कॉमेडी शोज़ में नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये होता है, बट ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक न्यूज़ एंकर हैं तो आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और उनकी भी गलती नहीं है। द थिंग इज ये पीछे से बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जब एज अ आरजे मुझे काम मिला, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था मैं रोज जाऊंगा, ठीक है, रेडियो के ऊपर कुछ भी बोल के आ जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। पीछे बैकएंड में एक बहुत बड़ी टीम होती है, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, म्यूजिक मैनेजर होता है, जो सारे म्यूजिक शोज को, ठीक है, जितने भी म्यूजिक है, लाइब्रेरी में से ये गाने ही चलेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी गाना मत चला दियो। अगर आपको लगता होगा कि यार आरजे के ऊपर तो ये है कोई सा भी गाना चला देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूजिक मैनेजर होता है, वो हमें एक लाइब्रेरी दे के लगता है, ठीक है। अगर आपका टी सीरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उनके गाने चलाओगे। कई बार ऐसे बैटल हो जाती है कि ये हमारे गाने नहीं चलाएगा, उसके बाद आपने चला दिए, फिर तनख्वाह कटेगी, ठीक है, डांट पड़ेगी, जॉब भी जा सकती है। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, बट आप इसे फन वे में करते हैं। सो आई एम ग्लैड बहुत सारे लड़कियों ने हाथ नहीं उठाया मुझे आरजे बनना है। आई एम ग्लैड अबाउट इट, बहुत अच्छी बात है। द थिंग इज आपको मैं एक बहुत कड़वा सच बताऊंगा, बट बहुत एक चीज बताऊंगा, आप ये देखो रेडियो स्टेशन कितने हैं अभी, किसी को एनी आइडिया हमारे दिल्ली में कितने रेडियो स्टेशन हैं? कितने रेडियो स्टेशन है? किसी को आइडिया नहीं यार। ये थोड़ी सी नॉलेज रखो, बिकॉज सिर्फ मैम एग्जैक्टली मैम ने बताया है। सो आपके यहाँ जो है रेडियो स्टेशन है, मैं आपको उंगली में गिना सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, जस्ट रिसर्च करना। बड़े बड़े आपको पता भी होंगे, रेड एफएम, ठीक है, मिर्ची हो गया, ठीक है, 94.3 एफएम हो गया, एक माई एफएम करके जो है वो दिल्ली में नहीं है आपका, बट यहाँ पे उसका प्रोडक्शन है। बहुत सारे ऐसे रेडियो स्टेशन हैं। बट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेडियो में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं आपको बोल के चले जाना है, बहुत बड़ी टीम आपकी होगी, आप बाउंड होगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो आप नहीं बोल सकते हैं। और आई थिंक पारुल मैम अब बहुत अच्छी एक बात बोल के गई हैं, रेडियो अब इवॉल्व हो रहा है, और जब कोई चीज़ इवॉल्व होने शुरू हो जाती है ना, तब आप उस इंडस्ट्री में हैं तो या तो आप बहुत कमाल कर जाते हैं या फिर आप सोचते हैं कि रहने देते हैं, इस फ्लो में जाते ही नहीं हैं। सो रेडियो अब इवॉल्व करने लगा। इसका मतलब कि पहले आप सिर्फ आरजेस को, जैसा मैम ने कहा, आवाज़ से पहचानते थे, एग्जैक्टली
सिर्फ आवाज़ से। अच्छा ये आया बंदा, इसकी आवाज़ है, ये नीलेश मिश्रा है, ठीक है। आपने कोई रेडियो ट्यून इन करा, अच्छा ये नितिन भाई हैं, रेड एफएम में आते थे, बहुत कमाल के, ठीक है। अब अभी वो फीवर में थे, अब आई थिंक वो 92.7 बिग एफएम में। मैं अपने टाइम में सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुनता था, और मिर्ची में भी उन्होंने काम करा है। सो अब जो है आप रेडियो को इवॉल्व होते इसलिए देख रहे हैं बिकॉज नीड है। सारी जेनजी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सारे लोग आप जेनजी हैं। मुझे लगता नहीं आप लोगों के पास आप लोग अगर ट्रैवल भी करते होंगे, कौन कौन रेडियो लिटरली सुनता है, कौन कौन लिटरली वो ट्यून इन करके सुनता है? 2 जने हो गए, ठीक है। आप सोचो कितनी भीड़ है, एक आप सुनते होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो? पॉडकास्ट कौन कौन सुनता है, ठीक है, देख लो। हालांकि हम गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त पे, और ऐसा है कि पॉडकास्ट को मुझे तो जो है मेरा ज़्यादा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसे देख के ही मज़ा आता है कि मैं देखूं भी ये क्या बात कर रहा है, किस एक्सप्रेशन के साथ कर रहा है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे वो हैंडल लगा के तब उसके बाद भी पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं। स्पॉटिफाई कौन कौन सुनता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देख लो, आप ट्रैवल करते वक्त मोस्टली सुनते होंगे, या ठीक है टीचर पढ़ा रही है क्लास में पीछे सुन रहे होंगे, ठीक है। ऐसा भी सर हिला रहा है, इसका नंबर नोट करो, कल इसके पापा को बुलाओ, ठीक है। सो क्या कहते हैं, बहुत बहुत ये मैं कहूँगा कि इवॉल्व तो हो रहा है, बट अच्छी बात यह कि रेडियो ने भी कहीं ना कहीं इसमें खुद को ढाल लिया। अब हमें बोला जाता है कि आपको रील बनाना मैंडेटरी है, ठीक है, आपको रील बनानी ही पड़ेगी। अगर आप वो सोचते हैं कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मुझसे एक्टिंग वगैरह होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जैसे तूने बोला भाई तू आरजे बनना चाहता है ना, एक और आप और आरजे बनना चाहते हो, ठीक है। सो मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूं कि अगर आप रेडियो इंडस्ट्री में आते हैं, उसके बाद सिर्फ रेडियो नहीं है, अब आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को कंटेंट क्रिएशन में। अब मुझे बताओ, आरजे तो सिर्फ 2 बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर कौन कौन बनना चाहता है यहाँ पे कि मैं अपना क्रिएट करना चाहता हूँ कंटेंट? देख लो कितना चेंज हो रहा है। यही सेम सवाल अगर मैं 10 साल पहले पूछता, आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बोलते हैं मुझे आरजे बनना है, क्योंकि आरजे एक कहीं ना कहीं अपनी सिटी का ना वो स्टार होता है जो लोकल मुद्दे उठा रहा है, ठीक है, बात कर रहा है, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे आ रहा है, अपना फेडर ऑन कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है लोगों को। अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कंटेंट क्रिएशन, किसी ने ऑलरेडी इस पर स्टेप लेना शुरू कर दिया? किस किस के कितने फॉलोअर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। नहीं भी होते कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके कितने हैं? 4K, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मम्मी के लिए क्रेडिट है, तू अपने पे मत जाइयो, ठीक है। ये मम्मी का दिए हुए फॉलोअर्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। और कुछ किसके कितने फॉलोअर्स हैं? 1500, वेरी गुड यार। और 1.1 के यार, देखा ये चीज जो है ना, ये चेंज हो रही है। अब आप सोचो, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, रेडियो पे जब मैं बात कर रहा हूं, मुश्किल से भी, अगर मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, दिल्ली से थोड़ा बाहर, जब मैं नागपुर में बात करता था, मुश्किल से रोज सुबह अगर 7 से 11 जा रहे हैं ना, और मान लो आप 1000 गाड़ियां निकल रही हैं एक जगह से, मुश्किल से 200 से 300 लोग सुनते थे। अब जिन लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, वो एक वीडियो डालते हैं, उनके खुद के अकेले के फॉलोअर 1000 हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये चेंज आता है। अब आप या तो रेडियो से इन्फ्लुएंस कर लो, या अपनी वीडियो से आप इन्फ्लुएंस कर दो, वो डिपेंड करता है आप अच्छे वे में करना चाहते हैं या फिर आप उसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो आपके। और आपको फ्रीडम है यार, आप इंडिया में रहते हैं, आप कैसे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे भाई ने बोला है, मम्मी के साथ कंटेंट बनाता है। इवन आई लव मेकिंग कंटेंट विथ माय मम्मी, इसलिए मेरे जो पेज का नाम है नालायक बेटा है। मैं मम्मी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे हरकत करके डालता रहता हूँ। तो आधे से ज़्यादा तो लोग जो कमेंट करते हैं ना, कहते हैं मम्मी को लेकर चल, तू मत आ, अपनी मम्मी को लेके आ, ठीक है, गलत उसमें मत लेना ओए, ठीक है, कि अपनी मम्मी के साथ कंटेंट बना, बड़ा मज़ा आता है। सो ये पावर है आपकी सोशल मीडिया के। और मैं यहाँ पे कुछ भी आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि भाई अच्छा है ये 2 जो लड़के हैं, 2 जो रेडियो पे जाना चाहते हैं, भाई तुम भी जाना छोड़ दो। नहीं, अगर तुम्हारा कि अंदर से पैशन आता है, तुम्हें फील्ड एक्सप्लोर करनी है, जैसे मेरा हो गया भाई, मैंने आई थिंक ये 3 साल रेडियो को दे दिए हैं। अब मैं वो रेडियो ट्यून इन खुद भी नहीं करना चाहूँगा, और इसमें कोई वाली बात नहीं है यार रेडियो इंडस्ट्री में होके ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं भाई, मेरा हो गया, मैं एक अपना मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा हो गया। मैं बहुत चंचल हूँ, मुझे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच करना होता है। मैं यहाँ किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि भाई रेडियो ख़त्म हो रहा है। रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये याद रखना। बट जैसे गिनती के, मैम ने बताया यहाँ पे, जैसे मान लो 10 रेडियो स्टेशन है, आप नागपुर में चला जाओ, गिनती के 4 रेडियो स्टेशन है। हर एक रेडियो स्टेशन में आपको
जो है 4 से 5 शोज देखने को मिलते हैं, वीकेंड शोज अलग है। 4 से 5 शोज मतलब एक रेडियो स्टेशन में 4 से 5 आरजे, और जब एक बार कोई आरजे बन जाता है ना, ठीक है, वो ये जॉब 5 से 10 साल, 20 साल, 15 साल छोड़ता नहीं है। बहुत बड़े बड़े आरजेस के मैं नाम बता दूंगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ 2 बच्चे जाना चाहते हैं अभी इस फील्ड में, यहाँ से मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी भाई जब तू ट्राई करेगा ना, जब रेडियो इंडस्ट्री में जाएगा, तू इंटरव्यू देगा, 1-2 साल तो तुझे ऐसे ही पता चलेगा, वो एंटरटेन भी नहीं करेंगे तुझे। तू जाएगा अपना रेज्यूमे देगा, सिक्योरिटी गार्ड साइड में रख देगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है। क्यों भाई? एक रेडियो स्टेशन में 4 से 5 ही रेडियो जॉकी हैं, वीकेंड वाले रेडियो जॉकी अलग है। अब वो लगे पड़े हैं इस जॉब को, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रेडियो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, बट कंपटीशन आज भी उतना ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, ये आपके कॉलेज की कहानी है, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर लोग बनना चाहते हैं रेडियो जॉकी, बट उन्हें इंटर्नशिप भी नहीं मिल पाती है। जस्ट मेक श्योर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट ईयर। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। दुनिया एकदम से नहीं पलट जाएगी कि कॉलेज गए और मैं तो कॉलेज में बहुत बढ़िया बोलता था, ठीक है, मैंने तो बहुत सारे ऐसे स्टेज शोज करे हैं तो मुझे तो आरजे बना देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप जब बाहर निकलेंगे आपको इंटर्नशिप मिलना भी हाय तौबा हो जाएगी, और जब इंटर्नशिप एक बार मिल भी जाएगी उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर एक मन कहता है यार मैं ये 1 साल से इंटर्नशिप करे जा रहा हूँ और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। वहाँ से फिर डिमोटिवेशन आता है, तब हम वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई अगर सोचा है ना कि आरजे बनना है ही, तो लगे रहो, करते रहो। 1 साल लग जाएंगे, 1.5 साल भी लग सकता है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे 3 महीने में मौका मिल गया था। एक गाजियाबाद का यहाँ पे रेडियो हिंट करके भी रेडियो स्टेशन है, ठीक है, लोकल वैसा रेडियो स्टेशन है, उसकी रेंज बहुत कम होती है। आपको पता ही होगा सर, रेडियो हिंट करके है, ठीक है, खेसरी साहब हैं वो उसे चलाते हैं। सो मैंने वहाँ पे भी करीबन 3 महीने काम करा था। 3 महीने काम करने के बाद उन्होंने ऐसे लात मारी, चल अब निकल जा, बहुत हो गया तेरा। सो ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और आई थिंक मैम आप तो खुद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैं गलत हूँ ना वहीं पे चप्पल फेंक के मार देना, फालतू मत बोल चल, ठीक है। तो मुझे आप मार देना, आप बोल देना तू गलत है, ठीक है। हाँ, वो मेरी मम्मी के अंदर भी औरतों वाली खूबी तो रहती है वो। मेरी माँ भी हर बात पे, और आप तो फिर भी मुझे मारी हो, मेरी माँ मेरे पापा पे मार देती है, ये ले। क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में नहीं, गरीब है हम। हमारे घर में शीशा ही नहीं है, ठीक है। अब गाड़ी चला गया, जी जी जी। ये देखो आपके अंदर जो महिला जागी ना, 4-5 लड़कियों को और भड़का दिया आपने मेरे खिलाफ। ये ठीक है यार, यही तो काम है मेरा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट यही बताना चाह रहा हूँ, मैम रेडियो फील्ड से हैं, आप लोग रेडियो फील्ड में जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2 हैं और ये भी फर्स्ट ईयर है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है, मन बदलेगा, स्विच करेगा दिमाग, एंकरिंग में जाऊं, रेडियो फील्ड में जाऊं, बहुत सारे कन्वर्ट होके चले जाएंगे, चल अब मैं आरजे बन जाता हूं। बट टफ होने वाला है, बट दैट डजंट मीन मुश्किल होने वाला है। जिसके आप 1000, 2000, 3000, 4-4 हजार फॉलोअर हैं, लिटरली आपको बता रहा हूं, इन लड़कों के लिए आसान रहने वाला है। किसके 50, 60, 70 हजार फॉलोअर हुए, टियर 2 सिटी में अप्लाई कर, ऐसे पकड़ के खींच के ले आएंगे, आजा मेरे भाई। ये रेडियो चेंज हो रहा है। क्यों? फॉलोअरशिप। वो देखते हैं कि अगर इसने एक स्टोरी डाल दी कि मेरा शो आने वाला है 7 से 11 मस्का मॉर्निंग, ठीक है, 98.3 मिर्ची पर, आप लोग मुझे सुनो, उठा के आपको आरजे बना देंगे। हाँ, बशर्ते सिर्फ फॉलोअर की बात नहीं है, आपको बोलना भी आना चाहिए, ठीक है, आपको कंटेंट बनाना भी आना चाहिए। कंटेंट बनाना इंस्टाग्राम पे अलग है, रेडियो पे बहुत अलग है, ठीक है। और यहाँ पर आपको तब पता चलता है कि यार फॉलोअरशिप कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आरजेस आपने देखा होगा, उनके आज भी फॉलोअर नहीं है, बट जब उनको कंपनी से ऐसे प्रेशर मिलता है ना, वो कहते हैं कि चलो यार अगले रात को मैं अपने फॉलोअर बढ़ा देता हूँ। ये चेंज जो आ रहा है ना इंडस्ट्री में, ये बड़ा भयंकर भी कह लो और ये अच्छा भी आप लोगों के लिए, बिकॉज जितने भी जेनजी यहाँ पर हैं इस वक्त पे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है वो वीडियो के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। रेडियो को आजकल लोग कम सुनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, पसंद भले ही करते हो बट कम सुन रहे हैं, प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जैसा आप लोगों ने खुद बताया, पॉडकास्ट हो गया, ठीक है, आप लोगों ने खुद बताया स्पॉटिफाई हो गया, आप लोगों ने खुद बताया गाना ऐप हो गया। ये कुछ ऐसे माध्यम है जिसमें हम गाना सुन लेंगे, हमें नहीं सुनना,
कि यार वो इतना लंबा ऐड आए, और रेडियो स्टेशन में ऐड के बिना काम चलता ही नहीं है, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा? सो सेल्स की जॉब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एक बार आरजे बनते हैं तो सिर्फ आपको रेडियो के पीछे नहीं रहना है, आपको स्टेज पे भी जाना पड़ेगा, आपको सेलेब इंटरव्यूज़ भी करने पड़ेंगे। जैसे मेरा जो मेन मोटिव था रेडियो आरजेइंग में जाने का, वो यही था कि यार कोई सेलिब्रिटी आएगा, उससे बात करूँगा। वो एक्सेस आपके पास होता है कि जब लोग भीड़ में ऐसे, जिनको एंट्री भी मिलनी है उनके शोज़ में अटेंड करने की, आप उनके लिए शो ओपन कर रहे हैं, माइक पर इंटरव्यू ले रहे हैं। सो मेरा मेन मोटिव वही था, और अब मैं इसीलिए रेडियो पर नहीं, मैं कहता हूँ मुझे पॉडकास्ट करवा लो, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ आता है तो वो मैं होस्ट करता हूँ। और इतने सारे लोगों से जब आपको मिलने का, बात करने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तब आपको ना आपके पर्सपेक्टिव भी लाइफ को लेकर चेंज होते हैं। सो जस्ट मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू यही देना चाहता हूं कि अगर आप आरजेइंग में जाना चाहते हैं या नहीं भी जाना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर खुद को भी ढालना शुरू कर दें। किताबों में ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा होगा जो कि आप वहाँ पे जब एचआर को बताएंगे या प्रोड्यूसर को बताएंगे कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये नंबर मेरे इतने आए थे, उसके बेसिस पे कोई सिलेक्ट आपको नहीं करने वाला है। रेडियो इंडस्ट्री में सबसे पहला जो चांस आपको मिलेगा वो इंटर्नशिप के थ्रू ही मिलने वाला है। जैसे ही सेकेंड ईयर में आते हो, थर्ड ईयर में आते हो, ट्राई फॉर इंटर्नशिप मेरे भाई, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए जाना ट्राई कर दो। पेड नहीं होती है बिल्कुल इंटर्नशिप, कहीं कहीं जगह बहुत आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। आई थिंक रेड एफएम में आपको पैसा मिल जाता है। मिर्ची में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप पेड नहीं मिलेगी। 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। तो आपको जस्ट बिकॉज मैं रेडियो से हूँ, आपको थोड़ा सा यही बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप देखने वाले हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। अभी से प्रिपेयर कर रखो, और ऐसा मत करना थर्ड ईयर आ गया है तब ट्राई करूँगा इंटर्नशिप के लिए। कॉलेज में आके कुछ ऐसा आप अलग नहीं उखाड़ लेंगे। हाँ, अपनी अटेंडेंस आप प्रॉपर मेंटेन करके चलो, बस इतना ही। उसके बाद सेकेंड ईयर से आई वुड सजेस्ट यू, जो रेडियो में जाना चाहता है, इंटर्नशिप के लिए डेफिनेटली ट्राई करना शुरू कर देना, ठीक है। जाने लग जाना, आप रेडियो स्टेशन में विजिट करने लग जाना। और अभी तक कोई है जिसने रेडियो स्टेशन कोई विजिट करा है यहाँ पर? एनीवन फ्रॉम हियर? किसी ने कोई रेडियो स्टेशन, न्यूज़ रूम? आप, अच्छा आपने करा है? कौन सा रेडियो स्टेशन? रेडियो मिर्ची ही करा था। सो आप लोग ऐसे, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप ऐसे रेडियो स्टेशंस जो है विजिट करना शुरू कर देना। इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी आरजे को देखते हो उसके इंस्टाग्राम पे, उसको मैसेज करोगे सर मुझे आरजे बनना है, ठीक है, तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा, बेटा इंटर्नशिप ट्राई करो। बेस्ट पार्ट यही है इस इंडस्ट्री का कि आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। और जब आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है मैं सिर्फ आरजे नहीं बनूंगा, यहाँ पर पीछे बहुत सारी चीज़ें। आप में से बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत क्रिएटिव होंगे जिन्हें लिखना बहुत पसंद होगा। सो एड्स जो होते हैं आपके दिमाग में, जब वो छप जाते हैं, किसी रेडियो पे आता है, जब वो कोई जिंगल आपके दिमाग में चल जाती है, क्यों? वहाँ पे जो पीछे एक बंदा बैठा है उसने उस जिंगल को डिज़ाइन करा है। बहुत सारे लड़के अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है बॉलीवुड में ही काम है, नहीं, रेडियो में भी म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं, कंपोजर होते हैं जो गाना, एक जिंगल डिज़ाइन करते हैं। सो रेडियो के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी फील्ड मिल जाएंगी। सिर्फ रेडियो जॉकिंग नहीं, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, जिन लोगों को लिखने का बहुत शौक है, जिंगल बनाने का बहुत शौक है। रेडियो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें करने का मौका मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट जो भी लोग करना चाहते हैं, ठीक है, रेडियो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है अब रेडियो में भी आ रही है। सो अगर मेरे भाई तू जाना चाहता है या कोई और भी लोग जाना चाहते हैं, अपना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, बिकॉज ये चीज़ होने वाली है। मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छा बोलते होगे, ठीक है, आप बहुत अच्छा लिखते होगे, बट एट द एंड कहाँ बात आके फंसेगी? अपने फॉलोअर बताओ। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है, बट आई थिंक ज़रूरी भी है। अगर आप एक स्टोरी डाल देंगे, ठीक है, कि यार मैं आज 7 से 11 रेडियो मिर्ची पे आने वाला हूँ, तो उनकी भी तो व्यूअरशिप बढ़ रही है ना। गलत कुछ नहीं है, जस्ट एट हमें ढलना पड़ेगा उस मीडियम के अकॉर्डिंग। अपना जस्ट इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू कर दो, एक नीश पकड़ लो, आरजेइंग हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो। आप एक क्रिएटिव फील्ड में आए हैं, यहाँ पर आप एक सीरियस जर्नलिज्म भी फॉलो कर सकते हैं, आप एक फन कोई भी टास्क भी उसकी तरफ भी जा सकते हैं, आप रेडियो में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। द्वार आपके खुले हुए हैं। मैंने इंजीनियरिंग करी है, ठीक है, मैं एक सेल्स में जा सकता था, वो भी क्यों? क्योंकि मेरा जो कोर्स था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो स्ट्रांग नहीं था। बट जब हम क्रिएटिव फील्ड में आते हैं ना, द्वार ऐसे हमारे पास बहुत खुल जाते हैं। कंपटीशन बहुत है, डरना नहीं है यार किसी भी चीज़ से, बहुत सिंपल है, जस्ट
ट्राई 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 ट्राई, और एक ऐसा जब आप ट्राई करते हैं वो हिट करता है, ठीक है, वहां पे बुलसाई बोलते हैं ना, वहां पर जाके हिट करता है, आपका हो जाता है, फिर बस लाइफ बहुत आपको लगता है उसके बाद स्मूथ चलेगी, नहीं चलती है। अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आगे की बात है, वो आप लोग खुद हैंडल कर लोगे, अभी भी आपको खुद ही हैंडल करना होगा। इट्स जस्ट दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेडियो हो चाहे टीवी हो, इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना शुरू कर देना। जब आप अंदर जाओगे, न्यूज़ रूम में सिर्फ एक एंकर नहीं होता है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो आपको तब जब इंटर्नशिप करेंगे पता चलेगा, आपकी आंखें खुलेंगी, यार अच्छा मैं एंकरिंग से ज़्यादा इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, मैं पीछे से बहुत चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। सो यही चीज़ें बस एक्सप्लोर करो। मेरा आपसे इतना ही कहना। आई थिंक सर आई एम डन विद दिस। आई होप अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे डायरेक्टली और भी कुछ पूछ सकते हैं, मतलब आप लोगों के पास माइक है, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यार हाँ मेरे भाई पूछ, माइक दे दो मेरे भाई को। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये इंटर्नशिप में रेडियो जॉकी की होता क्या है एक्चुअली, मतलब भाई वही मैं आप, ठीक है, सो बहुत सिंपल है। रेडियो जॉकी की इंटर्नशिप नहीं है, पहली बात तो रेडियो की इंटर्नशिप है। और जब आपको मैं बोलता हूँ रेडियो की इंटर्नशिप, वहाँ पर आपको सेल्स में जो आपके लिए धंधा लेकर आते हैं, रेडियो की भाषा में बोलते हैं धंधा लेकर आएगा, तब जाकर हमारे टारगेट अचीव होंगे। सेल्स के लोग भी मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक डायरेक्टर भी मिलेगा जो उसको सेल्स को हेड कर रहा होगा, वहाँ पे आपको एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी मिलेगा, एक म्यूज़िक कंपोज़र भी मिलेगा, एक आपको राइटर भी मिलेगा, एक म्यूज़िक मैनेजर भी मिलेगा, और जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा आपका प्रोड्यूसर भी मिलेगा जो शो को मैनेज करता होगा। हर शो का कई बार अलग प्रोड्यूसर भी होता है, कई बार रेडियो स्टेशन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एक प्रोड्यूसर भी रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है। सो मेरे भाई रेडियो जॉकी की इंटर्नशिप नहीं होगी, दिमाग से बिल्कुल हटा दिए कि अगर कॉलेज से बाहर निकलता है और सीधा बोलेंगे जा आरजे के साथ बैठ सुनिए क्या बोल रहा है, नहीं, पहले अंदर पूरा सिखाएंगे, ठीक है, सॉरी जब स्टूडियो से बाहर पूरा सिखाएंगे क्या चल रहा है, ठीक है, किस पे बात कर सकते हैं, पहले दिन न्यूज़पेपर दे देंगे, पढ़ किस किस चीज़ों के ऊपर बात कर सकता है। और रेडियो के ऐसा माध्यम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ट्रिकी भी है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी होगी, और थोड़ा सा आप जब करने लगेंगे आपको समझ आएगा अच्छा इसके बारे में बात करनी है। हम ऐसे कोई हार्डकोर जर्नलिज्म उसमें नहीं करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात हमें बोल देते हैं बिल्कुल मत करना, साफ मना कर देते हैं। एक बार हमने करी भी थी अपने शो में, हमें सीधा होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गया था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेडियो जो है जेनजी आप लोग बहुत कम सुन रहे हो, लेकिन नेता लोग जो है ना आज भी जब जा रहे होते हैं वो रेडियो को ट्यून इन करके सुनते हैं, उन्हें पता है कहीं मेरी कोई चोरी की बात ना कर दे, ठीक है। सो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको ऐसे हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं करना है, इंफोटेनमेंट करना है, इंफॉर्मेशन भी देनी है बट फन वे में, एंटरटेनमेंट वे में। आप नॉस्टैल्जिया के बारे में बात कर सकते हो, बारिश हो रही है, बारिश से रिलेटेड कोई बात कर सकते हो, ठीक है, बॉलीवुड के कुछ किस्से सुना सकते हो, ये है रेडियो बेसिकली आपका। सो मेरे भाई रेडियो जॉकी की इंटर्नशिप नहीं होती है, आई एम सो सॉरी। आपकी जो इंटर्नशिप होती है वो रेडियो स्टेशन की होती है, आपको पूरे रेडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये सब बताया जाता है। उसके बाद आपको तब जब आपका लास्ट कुछ इंटर्नशिप के डेज बचे होंगे तब आपको बोला जाएगा जा मेरे भाई आरजे के साथ बैठ, एनालाइज कर चीज़ें, कैसे बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, तब वो आपको कंटेंट की समझ तब होती है। बट उससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे बैकएंड में सिखाया जाएगा। उसके बाद जब आप एक बार इंटर्नशिप में घुस जाएंगे वहाँ पर आपके दोस्त बन जाएंगे या ना भी बने, बट आप उससे एक कम्युनिटी में हैं तो आपको पता चलता रहेगा अच्छा यहाँ पर जॉब निकली है, ठीक है, दिल्ली मार्केट में आना इज़ वेरी टफ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा टीयर 2 में जॉब निकल रही है, टीयर 2 में जाते हैं। मैं भी खुद टीयर 2 में गया था, बट पकड़ लेना उस वक्त पे टीयर 2 भी मिल रही है, टीयर 3 भी मिल रही है, बिकॉज टीयर 2 टीयर 3 का एक्सपीरियंस ही आपको टीयर 1 में लेके आता है। और अगर फॉलोअर है मेरे भाई तो बोलना थोड़ा सा आता है, कंटेंट लिखना आता है, तो फॉलोअर्स जो है कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करता है और आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कंटेंट क्रिएशन पे ज़रूर काम करें। कोई ऐसा कंटेंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो फन कंटेंट हो सकता है, ठीक है, आपको डांस करने का बहुत शौक है, आपको खाना से रिलेटेड कोई कंटेंट करने का बहुत शौक है, वो भी आप कर सकते हैं। वो जस्ट आपकी एक व्यूअरशिप डेफिनेटली देखी जाती है। तो अगर जाने का सोच रहे हो आरजेइंग में, ये चीज़ पर अभी से काम करना शुरू कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल लेंगे, कौन आ रहा है? सर आपने अपना इंस्टाग्राम हैंडल कैसे स्ट्रॉन्ग किया, लाइक कुछ टिप्स एंड ऑल? यार मैं बिल्कुल टिप नहीं दूंगा इसके बारे में, बिकॉज मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, अब मैं और उसे कम करता जा रहा हूँ या मेरा कम होता जा रहा है।
सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ, मुझसे मत पूछना, मैं आपको किसी से भी पूछोगे ना आप यही बताएगा, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ डालते रहो, ठीक है। मुझे याद है जब मैं आरजे में गया था, नया नया जोश था, ठीक है, नई नई चीज़ें जब मैं कर रहा था, तो मैंने 25,000 के करीब फॉलोअर कर लिए थे, ठीक है। मैं डेली ऐसे कंटेंट निकाला था। उसके बाद जब मैंने, क्योंकि आई लव स्टेज, मुझे वो रेडियो के अंदर अकेले माइक से करने से ज़्यादा मज़ा आता है, 4 लोगों के साथ बातें करूँ, इवेंट्स करूँ, तो फिर मेरा वो कहीं ना कहीं वो छूटता रहा, आरजेइंग छूटता रहा। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में मैं ज़्यादा करने लग गया। सो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर अपना कंटेंट क्रिएशन गेम स्ट्रॉन्ग करना है, लगातार डालो, मत सोचना कि यार मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, ठीक है, मत सोचना ये हैशटैग डालूंगा तो वायरल हो जाएगा, ठीक है, मत सोचना कि मैं सिर्फ ट्रेंडिंग बनाऊंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा। एक दिन के लिए वायरल नहीं होना है भाई, डेली आपको कंटेंट डालना है। जब डेली कंटेंट डालेंगे ना, लोग कहीं ना कहीं दिखते हैं, यार ये लड़का फिर आ जाता है मेरी फीड पे, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, तब वो जाके आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंटली आप डालें। एक अगर आपने फ्लो बना लिया कि भाई जैसे होता है ना कि रोज सुबह 9 बजे कॉलेज जाना ही है, अटेंडेंस तभी मार्क होगी, सेम आपके लिए कंटेंट क्रिएशन आपका गेम प्ले करता है। डेली आप डालेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका खुद से वो गेम स्ट्रांग होने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि अच्छा अभी मैं ये चीज़ भी कर लेता हूँ, इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, अच्छा मेरी नीश जो है इस चीज़ में ज़्यादा अच्छी बन रही है, मैं फन क्रिएटिंग कंटेंट बनाता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छी नीश बन रही है तो इस वाले को रहने देता हूँ। फिर आप वो गेम समझने लग जाते हैं। वो सबकी ना एक इंडिविजुअल जर्नी है भाई। बस मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, उस इंडिविजुअल जर्नी को जो सारे लोग फॉलो करते हैं, चाहे किसी के 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर ये होंगे, वो सब आपको यही करेंगे। जब उन्होंने स्टार्ट करा था वो कंसिस्टेंट थे, उन्होंने डेली कंटेंट बनाया था, ठीक है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे ऐसे अपलोड करना शुरू करा था। जस्ट एक टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप बस पोस्ट करना शुरू कर दो, ज़्यादा कुछ मत सोचो यार, क्योंकि बहुत लोग होंगे, ठीक है, आपके दोस्त ही जो होंगे, भाई क्या बना रहा है यार, ठीक है, ऐसे भी होंगे, ठीक है। मम्मी पापा कई बार बोल देंगे मत बनाया कर ये सब, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए भी रेडी रहो। ये एंटरटेनमेंट, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप खुद को एक्सपोज करते हो, मतलब आप जो है लोगों के सामने आ रहे हो। अब जब आप लोगों के सामने आओगे, वो आपको जज तो करने वाले हैं, फिर आप ये नहीं बोल सकते यार ये मुझे जज कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। भाई तू बनाता जाना, और एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होना चाहिए, ये भी मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए मैं क्या बना रहा हूं, मैं अपनी कम्युनिटी को, मैं अपने फॉलोअर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं। तो एक वो सेल्फ रियलाइजेशन भी होना चाहिए। मान लीजिए आप कंसिस्टेंट है बट आपका गेम चेंज नहीं हो रहा है, तो ट्राई करो उस नीश को चेंज करने का, कि मैं अब कोई और नीश पकड़ता हूँ। सो सेल्फ रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कोई जज कर रहा है करने देना यार। बहुत सारे लोग इसीलिए रुक जाते हैं। मैं खुद कई बार, मैं आप लोगों को तो ज्ञान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, बट मैं खुद भी कई बार जब ऐसे बकवास कुछ कमेंट आ जाता है या कोई लोग कह देते हैं भाई ये क्या बना रहा है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैं भी रुक जाता हूँ यार। बट ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, और ये हम सारे लोगों की जो है कमी है। तो इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है आपके साथ साथ मुझे भी काम करना चाहिए, तभी ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगले पे आएंगे, कौन है अगला? हाँ यस, हाँ मेरे भाई बताओ, आप माइक दे दो उन्हें। सर आप जैसे आप ऑन एयर जाते होगे जी, तो जी। फिर जब आप स्टार्ट करते हो तो अभी आप बोल रहे हो कुछ कुछ और उसके बिटवीन आपसे कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर आप उसको कवर अप कैसे करते हाँ हो? मैं आपको और बताता कोई हूँ। इंसिडेंट हो ऐसा तो? राइट, सो टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत ब्लंडर हो गया, ठीक है। आपके साथ हुआ है क्या? ठीक है, सो ये होता है। अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, अब वो भी आपको जज करना है खुद को, ठीक है, कि यार ये एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जा सकता है या ये नहीं जा सकता। एक साइड में एक स्विच दिया होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेडियो पे मैंने बात करी, अभी मैंने आपसे बात करी, ये इंस्टेंट आपको मेरे से रिएक्शन मिलेगा, इंस्टेंट आप मुझे रिएक्शन देंगे, डिले नहीं है, ठीक है। बट रेडियो पे 5 से आई थिंक 8 सेकंड का डिले होता है मैम, ऐसा कुछ डिले होता है, ठीक है। 2 से राइट 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड, हमारे मिर्ची में 5 से आई थिंक 8 सेकंड तक का डिले है। सारे अलग अलग रेडियो स्टेशन का अलग अलग होता है, जैसे मैम ने बताया। सो 5 सेकंड का डिले होता है। सो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़े आरजे, बहुत कमाल के, ठीक है, बहुत ही कमाल के आरजे, ठीक है, उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने रियलाइज कर दिया उन्होंने कुछ बहुत ही गलत बोल दिया। हटे, डेस्क पे मारा, धत देनी उस पर, जो वहाँ पे आई थिंक बटन होता है, उस पर क्लिक करा तो वो जो है आपने जो बोला उसको डिलीट कर देता है, वो ऑन एयर नहीं जाता है। तो कभी ऐसा हो भी जाए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और अगर आपने कई बार गलत नहीं भी बोला होता है, उसके बाद भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो यार ऐसा भी है। लेकिन अगर आपको रियलाइज हो गया कुछ गलत आपने बोला है, एक आपको वहाँ पे स्विच दिया रहता है, उस पर प्रेस करो, कट जाती है आपकी बात, एडिट हो जाती है, बहुत सिंपल है।
जब ऑडियो सिग्नल्स मॉड्यूलेट होते हैं विद द अपलिंक एंड द डाउनलिंक, इट्स टेक टाइम, ठीक है। हम लोग बोलने के बाद वो अपलिंक होता है, फिर वो डाउनलिंक होता है, तो डाउनलिंक इसमें डिले आता है, वीडियो में भी होता है। तो ये चीज़ मैंने अंडरलाइन करके समझा दी, क्योंकि ये आएगा आपके पास अपलिंक एंड द डाउनलिंक। वीडियो एडिटर्स इसलिए प्री रोल और पोस्ट रोल लेके चलते हैं अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए, इसलिए बस मैंने क्लियर करा। तो एक स्विच होता है, या मैम, या प्लीज़। जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, जो डिले की ये बात कर रहे हैं ना, इनकी बहुत लकी हैं ये लोग कि अब इनके पास डिले होता है। व्हेन आई वाज विद रेड वो डिले नहीं होता था। सो इफ़ यू हैव गॉन लाइव, यू हैव गॉन लाइव, एंड येस आई हैव डन मैनी ब्लंडर्स। मैंने अपना माइक ऑन ही छोड़ दिया था, एंड उसके बाद जो मैंने जो भी बोला था वो सब गाने के साथ साथ आ ही जा रहा था उस पर। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस सेइंग, तुझे पता तू क्या बोल रही है? मैंने कहा हाँ, मतलब क्या बोल रही है, मतलब लिंक हो गया। एंड देन शी लाइक, नहीं, गाने के ऊपर तुम्हारी बातें भी आ रही हैं। एंड गेस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट? माय बॉस। हाँ ठीक है, मतलब मैम ने बढ़िया गालियाँ दी हैं जो बीप में नहीं गई, ठीक है। सो क्या कहते हैं, ये होता है, ये जैसे मैम ने बोला, ये अनइंटेंशनल, आपने पता ही नहीं चला आपके। और ये तो मेरे साथ बहुत हुआ है भाई, कि मतलब स्विच ऑन माइक का ऑफ करना होता है, जैसे ही हमने बोला वो ऑन करके गया है, सारी बातें पीछे से जा रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी उसी टाइम पे आती है। आपको अपना शो नंबर 1 बनाना हो, ये कर दो, बोला मैम रेटिंग तो आ रही है। सो द थिंग इज कि ये तो बहुत होता है। बट हाँ, आपको लगता है कुछ आपने बहुत ऑफेंसिव बोलते, गाली निकल जाते हैं। जेंजीज हैं यार, हम में से बहुत लोग गाली देते होंगे, मेरे मुंह से कभी नहीं निकली है, बिकॉज मैं अपनी, अब जब ऐसे दोस्तों में, 4 दोस्तों में बैठा रहता हूँ, मैं वैसा बनता हूँ, गाली देता नहीं हूँ, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गाली देते हैं वो गलत है, नहीं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग गाली देते हैं, तो आप रेडियो पे आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो लत लगी पड़ी है, आपके मुंह से निकल गया बहन बीप, बस ऐसे हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने गाली दे दी, एकदम से आपको वो स्विच दबाना है। जा सकता है, बहुत आरजेस का गया है, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे प्रैंक वाले, वो मुर्गा टाइप हो गए या बउआ हो गए, वो सुने हैं जिसपे गाली जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा ही बंदा था, इंटर्नशिप करने पहुंचा था, उसे आरजे ने बोला था कि भाई इसे एडिट कर दियो, उसने एडिट नहीं करा, बीप नहीं लगाई, अब वो जा रहा है। सो ये चीजें आपको प्रोडक्शन में, जब मैं जिसकी बात कर रहा था, जब आप वहां पर जाएंगे तब आपको पकड़ में आएंगी, तब आप इसे सुनेंगे। सो भाई यस, जैसा मैम आपने कहा कि हम कर सकते हैं या कट, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसमें नौबत आनी नहीं चाहिए। सो जब आप रेडियो में अगर घुसने का ट्राई कर रहे हैं, एंकरिंग में घुसने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करें उन 3-4 महीने के इंटर्नशिप में वो गाली का जो माहौल हमने अपने आसपास बना रखा ना, उसे कम कर दो, ठीक है। वो बुरा नहीं है, गलत नहीं है, हम दोस्तों में 4 लोग खुल के गाली देते हैं, बट जब हम वो चीज़ अगर हमारी वर्क प्लेस पे आ रही है, जहाँ हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वहाँ पर आ जाए, बहुत भद्दा लगता है, गंदा लगता है, तब आपको लोग जज करते हैं। नहीं यार, ये अगर मैं किसी से सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ में दूंगा, कहीं से कोई गवर्नमेंट शो होस्ट करने को बोलूँगा, ये वहाँ पर भी गाली देगा, और जो कि गलत नहीं है, वो गलत आपको जज नहीं कर रहे हैं। फिर आप कितना ही बोलते रहे यार मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बट आपसे वो गलती हुई है ना, जस्ट मेक श्योर उस वक्त पे हम थोड़ा ये गाली वाली कम दें, बिकॉज वो हैबिट की बात होती है। एक बार हैबिचुअल बने किसी चीज़ के, हो सकता है वो माइक पे भी आपसे निकल जाए, तो वो नौबत ही ना है कि आपको वो स्विच प्रेस करना पड़े। जस्ट मेक श्योर कि हम उस वक्त पर थोड़ा सा वो गाली वगैरह कम दें, दैट्स इट। अगला 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 अगला, बहुत बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन है, आई लव दिस। हाँ, I want to add one thing. Language, yes, you need to work on that. There are so many words that you cannot use on air, allowed नहीं है. But just one tip for those जो anchoring और उन सब चीज़ों में आना चाहते हैं, cover up is a wrong word. I would say be natural. हो गई ना गलती, मांग लो माफ़ी. ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, ज़्यादा लिसनरशिप मिलेगी when people will be able to relate with you. अच्छा हम भी ऐसी गलती करते हैं, then we say sorry. अरे यार गलती हो गई. नहीं मेरा वो मतलब नहीं था. कितनी बार ऐसा हुआ है, हमने खांसी जुकाम नेचुरल रह के भी हमने शोज़ किए हैं, तो सो दैट लोगों को लगता है कि हाँ यार बेचारे को देखिए यार कैसे खांसी जुकाम हो रहा है, चाय की सिप लेते हुए हम कर रहे हैं. सो बी नेचुरल, बी योरसेल्फ, दैट्स इट. दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सही बात मैम ने बोली, और मुझे इससे अपना एक रेडियो फील्ड का किस्सा याद आ गया. सो आपके ना कुछ ऐसे लिसनर बन जाते हैं ना जो आपकी फैमिली हो जाते हैं, ठीक है. अब जैसे रेडियो में मेरी एक लिसनर वो मेरी बहन बन गई. आज तक वो मुझे राखी भेजती है. शी इज़ इन नागपुर,
और वो मेरा शो सुनती थी, हमारी ऐसे बात हुई, उसने बोला कि आपकी बहुत ऐसे भैया वाली वाइब है। मैं बड़ा बुरा तो लगा, मैंने बट कोई नहीं, मैंने सीधा हाथ आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा राखी बांधो। उसके बाद से आज तक स्टिल जो है ना वो मुझे राखी भेजती है, ठीक है। और हमारा एक कनेक्शन है। रेडियो में आपको ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब रेडियो क्या है, ये न्यूज़ में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बट आई डोंट नो न्यूज़ पे मिलेंगे या नहीं। रेडियो में एक ऐसा है ना, आपका एक पर्सनल कनेक्ट होता है। आप बोलेंगे कि 011483983 इस पर कॉल करके मुझसे बात करो, मुझे बताओ आज क्या चल रहा है, आपके घर में क्या बना है। आपकी लिटरली बात होगी, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर ना आपका एक ऐसे लॉयल फैन बेस बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। सो मैम ने जैसे बोला ना कि खांसी आ जाती थी, मेरा होता था कि मुझे एक शो में मैं बहुत बीमार पड़ा था, और बहुत अच्छी बात बोली मैम ने, बिल्कुल कवर अप करने की जरूरत नहीं है। आप रोबोट नहीं हो, ठीक है, कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। आप AI नहीं हो कि आपकी हर एक चीज एक्यूरेट होगी। जस्ट बी नेचुरल। जो गलतियां हो रही हैं करने दो। किसी ने नहीं बोला कि रेडियो जॉकी फंबल नहीं करता, बहुत करते हैं। मैं अपने शोज में इतना फंबल मारता हूं, मैं अपने स्टेज शोज में इतना फंबल मारता हूं, बिकॉज वो नेचुरल है। मैं बोलते बोलते ना अब नेक्स्ट लाइन सोच रहा हूं मेरे दिमाग से क्या निकलेगा, तो वो आएगा। वो डिले कहीं ना कहीं माइंड में भी चल रहा है, वो चीजें चल रही है, और जब मैं वो थ्रो कर रहा हूं आपके पास, हो सकता है वो सही ना जाए। तो बी नेचुरल यार। उस वक्त पे आप अगर खांसी आ रही है, खांस दो। तो मुझे बहुत जुकाम हो रखा था, ठीक है, मेरा ऐसे गला बिल्कुल खराब हो रखा था, और आपके लिसनर इतने प्यारे होते हैं जो आपको शो सुनते हैं। तो मैं उस शो पे बहुत ऐसे सर खांस रहा था, ठीक है, मुझे छींक आए जा रही थी। तो एक बहुत ही प्यारी मैम थी, आई थिंक 41 ईयर्स की थी, और उन्होंने मुझे, जब मैंने बोला कि 011483983 इस पर कॉल करके मुझे बताएं कि मुझे दादी का वो कौन सा नुस्खा अपनाना चाहिए जिससे मेरी ये सही हो जाए। उन्होंने मुझसे बात करी, ठीक है, मुझसे एड्रेस पूछा। थोड़ी सी देर में उन्होंने वो एक क्योंकि वो हमारे रेडियो स्टेशन के बहुत ही ऐसे क्लोज रहती थी, एक उसी एरिया में थी, उन्होंने चाय मंगवा दी, बिस्किट, और मेरे रेडियो स्टेशन में वो क्या कहते हैं डिलीवर करवा दिए। थोड़ी सी देर में भैया आते हैं, सर आपके लिए कुछ है, और माँ कसम इतनी खूबसूरत चाय बनाई उन्होंने। मैं चाय नहीं पीता वैसे, बट जब भी मुझे ऐसे हुड़क होती थी ना कि यार मुझे चाय पीनी है, कुछ नहीं करता था मैं, गया माइक पे हाँ छी, तो उनके आ जाती थी कि आज मेरा बच्चा फिर से बीमार है। सो ऐसे ना आपको कुछ लोग जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं रेडियो पे, जो ना आपके अपने बन जाते हैं। सो जब भी ऐसे मैं बीमार होता था, कोई आपको दवाई भेज दे रहा है, कोई आपको चाय भेज दे रहा है, और ये अब तो बहुत कम होने लग गया है, बिकॉज डेफिनेटली व्यूअरशिप घटने लगी है। बट आप अगर ऐसे बहुत पुराने आरजेस को सुनो, आरजे साइमा हो गई, आरजे नवीद हो गई, जिन्होंने इंडस्ट्री का लेवल यहाँ पे सेट करा है। हम तो अभी खराब ही कर रहे हैं, आपको सच्ची बता रहा हूँ। ये लोग ना रेडियो को यहाँ पर लेके गए हैं। मैंने आरजे साइमा के लिए, ठीक है, एक टाइम पे उन्हें कहा जाता था रेडियो की सबसे खूबसूरत जो है वो क्वीन उन्हें कहा जाता था। उनके लिए मैंने खून से बने हुए लेटर आते देखे, आज भी उनके पास इतना बड़ा कलेक्शन है। तो मेरी जो सीट है उनके मैम की जो है सामने ही सीट है, खून से बने हुए लेटर, ठीक है, अब नहीं आते। क्यों? ये चीज़ हो गई, अब हम जेनजी ऑडियंस हैं, अब शायद ये खून के जो लेटर हैं वो उर्फी जावेद को जाते होंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये चेंज आ रहा है, ठीक है। तो साइमा मैम को इतने सारे लेटर, किसी ने बुक गिफ्ट करी है, किसी ने कुछ करा है, और सच्चाई ये है कि अभी भी अगर आप लॉयल हो, ठीक है, अभी भी आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को। जो कुछ लोग हैं जो 40 की ऑडियंस है, 45 की ऑडियंस है, 30, 35, वो आज भी आपको सुन रहे हैं, और वो अगर आपकी एक बात से भी प्रभावित हो गए ना, वो डेफिनेटली बहुत प्यार आपको दिखाते हैं। लेटर अब तो आना बंद हो गए हैं रेडियो स्टेशन में, बट ऐसा क्रेजी ज़माना हुआ करता था। मुझे तो वो मौका मिला साइमा मैम के बगल में बैठने का, नवेद भाई के बगल में बैठने का। उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए हैं, आप लोग लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते कि बॉलीवुड के इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी ये किस्सा होता होगा। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका भी एक अलग आनंद है। सैलरी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों का जो प्यार आ रहा है, वो अब किसी भी फील्ड में हो ना, वो एक एडिशनल पॉइंट ऐड करता है। नेक्स्ट सवाल किस पे आते हैं? ठीक है, हाँ जी मैम बताइए, माइक दे दो मैम को। बहुत बढ़िया, नाम से स्टार्ट करें, क्या नाम है आपका? रितिका, बहुत बढ़िया। कृतिका, रितिका? रितिका। रितिका, हाय रितिका, कैसे हो आप? ठीक विच हूँ, आप ईयर? कैसे विच हो? ईयर? विच First ईयर? year। फर्स्ट ईयर। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। क्या बनना चाहती हो? मैं एंकर, बहुत ही बढ़िया। न्यूज एंकर? वो न्यूज़ एंकर तो और रिपोर्टर। गरीब बनना है, अमीर वाला बनना है? ग्राउंड से स्टार्टिंग करेंगे, ग्राउंड से अच्छा start। करेंगे तो अमीर हो जाएंगे। नहीं मोटा करें- अमीर, अमीर तब वो थोड़ा सा ना झोल झाल करना अच्छा पड़ेगा न्यूज करेंगे, में। नहीं झोल झाल करके नहीं, है। जो रिस्पेक्टफुली मिलेगा वो अच्छा है। अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ये एक ऐसा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कभी किसी और कॉलेज में जाता हूँ, टीचर बोलते हैं इस बारे में बात मत करना। क्यों नहीं करना भाई? आपने बुलाया है, आप चाहते हैं मैं आपको एक सही इंसाइट दूं, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये होता है और गलत नहीं है।
अगर कोई अमीर एंकर बनना चाहता है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, कुछ बुराई नहीं है, बहुत मोटा पैसा है। मैं ऐसे भी आरजेस को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जिन्हें गवर्नमेंट से ऐसी कमाल की फंडिंग होती है ना, इसे भी रिकॉर्ड कर लो, जेल पहुंचा दो सीधा, ठीक है ठीक है, जिनको गवर्नमेंट से कमाल की फंडिंग होती है और वो तारीफ करते हैं गवर्नमेंट की, जो गलत नहीं है, अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं मानता हूं। बट अगर अमीर फटाफट से वो चाहते हैं कि मुझे यार वो ग्राउंड से नहीं सीखना है, ठीक है, जहां मैं पढ़ा हूं भारतीय विद्या भवन में, रमेश सर जैसे, विशाल सर जैसे लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया था भाई ग्राउंड से ही स्टार्ट ही होनी चाहिए। वो रूट से जब आप पकड़ते हैं ना चीज़ों को, आपको ज़्यादा समझ आता है। सो मोटा पैसा कमाना है, आज वो भी स्कोप है आपके पास, बशर्ते आप या तो लेफ्ट पकड़ लो या राइट पकड़ लो, एक चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। तो हाँ, अब बताओ आप। सर हमें पता है कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी जी। है और ये आरजे का फील्ड, जी। दोनों बहुत डिफरेंट फील्ड है। जी। तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आपको आरजे के फील्ड में आना है? क्योंकि इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो बहुत पढ़ंतू होते हैं, हमने नहीं सुना नहीं, है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं 10th तक बहुत पढ़ाकू था, ऐसा मेरा पेपर में फोटो आया था। फिर मैं 11th 12th में थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि संगत मेरी ऐसी सी। फिर कॉलेज में फिर मैंने कहा नहीं यार, मैकेनिकल इंजीनियर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अब अच्छे से नंबर करना है, तो मैंने वहाँ मैथ्स में ऐसे टॉप करा पूरी यूनिवर्सिटी में। सेकंड ईयर में फिर बिगड़ गया क्योंकि गर्लफ्रेंड बन गई थी, ठीक है, ध्यान वहाँ सारा चल जाने लग गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था, बाहर बंक मारता रहता था। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड के बनने से भाई लोग आगे की तरफ भी बढ़ते हैं, बट मैं थोड़ा, जैसे मैंने बताया, नॉटी बच्चा हूँ, नॉटी है, तो मैं क्या कहते हैं, कॉलेज ना आके कहीं और ही जाने लग गए हम दोनों, ठीक है। भाई गलत जगह नहीं जा रहे थे, मजाक कर रहा हूँ, पार्कों में बैठते थे यार। तो क्या कहते हैं, मैं वहां पे थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो भाई इंस्पिरेशन मैं आपको बताऊं, इंस्पिरेशन ये ना आपके आसपास के लोग ही आपको बना देते हैं। अब जो मेरी बंदी थी, उसके सामने मैं ऐसे कुछ फन चुटकुले मार रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, उसने बोला यार तू तो बहुत अच्छा कर सकता है, स्टेज वगैरह ट्राई कर। आपके जो दोस्त हैं आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेट कर देंगे, ठीक है। जब आप ऐसे कॉलेज में, जैसे वो मैम पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंकरिंग में आ रही हैं, ठीक है, आपको ना टीचर से वो, और वो अप्रिशिएशन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर किसी को कोई देता नहीं है यार। और जब टीचर आपको देते हैं, आपकी छाती चौड़ी हो जाती है। आप उस दिन ना रात को जाके सोचते हैं, ओए होए यार विशाल सर ने मेरी तारीफ करी थी। मतलब ऐसे मत एक्सप्रेशन सोचो, बट आप सोचोगे यार कि विशाल सर ने मेरी तारीफ करी थी, वाह मज़ा आ गया, तब आपका वो इंस्पिरेशन बनता है। और ये लिटरली बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आपके एक दोस्त ने बोल दिया यार तू तो बड़ी कमाल की मिमिक्री करता है, तू क्यों ना मिमिक्री आर्टिस्ट बन जा, तू इंस्टाग्राम पे रील बनाए ना। आपके वो ना दोस्त आपके आसपास ही मिल जाएंगे, और आपको तब आप खुद से इंस्पायर होगे उन दोस्तों से, जब आपको वो चढ़ाएंगे, कहते हैं ना चढ़ा रहा है, अबे नहीं। तो मेरा तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन वही था, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, ठीक है। और मैं घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ मिमिक्री में कोई प्रैंक कर देता था। एक बार मैं केबीसी का अमिताभ बच्चन बन गया, मैंने कहा भाई साहब आप जीत चुके हैं 1 करोड़, ठीक है। मम्मी को लगा कि भाई ये तो सच्ची में अमिताभ बच्चन से कॉल आई है। फिर मम्मी ने बोला अरे मुझे लिटरली लगा था। ये चीज़ें जब हम ट्राई करना शुरू कर देते हैं ना, आपके आसपास के लोग आपको वो जो अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तब आप सोचते हैं ये मैं नहीं करूंगा इंजीनियरिंग की जॉब, भले ही मुझे कितने पैसे दे दे, मुझे वो मेरा पैशन फॉलो करना है, उसे मॉनिटरी बेनिफिट में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा आपका जवाब, थैंक यू सो मच। अगले पे आते हैं, बहुत बढ़िया, आ जाओ। सर मेरा नाम देवांग है। भाई बोल यार, सर्वर मत बोल यार। मैं भी ना अभी, मेरी सच्ची बात, अच्छी बात यह है कि मैं अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, अपने आसपास के लोगों में ही खेल रहा हूँ, तो अभी सर नहीं भाई बोल मोहित भाई। मोहित भाई। हाँ, लड़कियों को भाई नहीं बोलना है, ठीक है सिर्फ लड़कों के लिए। हाँ मेरे भाई बता। मेरे को आगे जाके स्टैंड अप कॉमेडी एज अ साइड हसल करना है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। तो मैं अभी, मतलब मैंने कभी करी नहीं है लाइफ में, तो मैं जब भी पुरानी वीडियोस देखता हूँ, आईजीएल की हो गई या बाकी सब हो गया, ठीक है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। बहुत लेकिन बढ़िया। आपने अभी तक जो जो बताया, हाँ, वो भी उस वे में था, तो आपका क्या माइंडसेट या कोई टिप्स हो? भाई मैं आपको बताता हूँ, स्टैंड अप तुझे करना है, ठीक है, बहुत कमाल का पैशन है इस वक्त पे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, स्टैंड अप हो गया, कंटेंट क्रिएशन है ना, फट के आ रहा है भाई बाहर, बिल्कुल अभी ट्राई कर दो। मोटा पैसा कंटेंट क्रिएशन में आप सोचोगे भी नहीं, जो बॉलीवुड के या टीवी सीरियल के बड़े बड़े स्टार है ना, मंथली वो इतना नहीं कमा रहे होंगे। और ये मोटिवेशन सिर्फ पैसों का नहीं है, किसी का पैसों का होता है, किसी का होता है कि मुझे फेम चाहिए, किसी का होता है कि नहीं मुझे तो जस्ट ट्राई करना है। सो मेरे भाई, अगर आप स्टैंड अप करना चाहते हो, सिंपल सी एक चीज, बिकॉज मैं भी वो ट्राई करता हूं, ओपन माइक्स कर ज्यादा से ज्यादा, जितना, ठीक है। गुड़गांव में कॉमेडी थिएटर मिल जाएगा, ठीक है, लाफ स्टोर मिल जाएगा, क्या कहते हैं, द्वारका में इतने सारे कॉमेडी के आपको ओपन माइक्स करने का मौका मिल जाएगा। बस एक बार आपका सेट प्रिपेयर हुआ, और लिटरली जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत कमाल की फील्ड है मेरे भाई। आप देख लो ना, कितने बड़े बड़े स्टार हैं, हर्ष भाई हैं, बस्सी भाई हैं, ठीक है, समय रैना है, ये कितना पैसा तो छाप ही रहे हैं। बट इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ पैसा है। जिस लोगों को, जिनको शौक है ना माइक पे बात करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो फिर अपनी फील्ड, वो अपनी जगह ना मेरे भाई बना ही लेते हैं। तू क्योंकि स्टैंड अप में जाना चाहता है, जस्ट ये सजेस्ट करना चाहूँगा,
साइड हसल ही वहां पे मौका मिलता है, वो कोई फुल टाइम है भी नहीं, क्योंकि साइड हसल आपको मिल रही है कि उन्होंने बोला रात के 2 बजे ओपन माइक है आजा, तो रात के 2 बजे जा रहा है। अब रात के 2 बजे बाकी काम तो है नहीं कुछ, ठीक है, 10 बजे तक तूने अपना ऑफिस भी निपटा लिया, सारे काम कर लिया, 2 बजे जा रहा है ओपन माइक कर रहा है, तुझे एक स्पॉट मिला है 8 बजे जा रहा है, तो साइड हसल से ही स्टार्ट होगा। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं जाते ही कॉमेडी में, ठीक है, छक्का मार दूंगा, सीधा सेट लिख दूंगा, ठीक है, जब तक घर पे बैठूंगा, नहीं मेरे भाई, क्या कहते हैं, साइड में जॉब भी करो, साइड हसल भी करो, बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है। और अगर आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ है, तो लोगों से अप्रिशिएशन से आपको पता चल जाएगा, तो ऐसे आप मेरे भाई साइड हसल कर सकते हो। अगले पे आते हैं, कौन है अगला? है, थैंक यू, बस जाऊं, भगा दिया, वेरी गुड, चलो ठीक है, आप बोलो बोलो बोलो। Thank you, sir. Thank you, आपका ma'am. session was very, very interesting, and I'm sure everybody enjoyed it Thank today. you. And हाँ ले लो, आ जाओ भाई, बोलो मेरे भाई, क्या नाम है मेरे भाई का? ईशान, ठीक है, हाय ईशान, कैसा है मेरे भाई? जी सर मैं अच्छा हूँ। आए। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, एक करके, पहले एक करके दिखा मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करने में, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे बहुत मिमिक्री वगैरह करता हूँ। चलो 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 भाई, ये तो गोपियों का फेवरेट है, बीच में बैठा, ओए होए, हाय, आई लव यू मेरे भाई, तू आधे से ज्यादा लड़कों की ड्रीम लाइफ जी रहा है, तुझे पता है? 3 लड़कियां इधर, 2 इधर, और एक तरह MMS बना रही है, आज ही बोलेगा। क्या लाइफ है भाई, बहुत बढ़िया यार, क्या होता है यार ईशान मेरे भाई। हाँ मेरे भाई बोल। हाँ तो सर मैं एनिमेशंस की मिमिक्री करता हूँ, एनिमेशन कैरेक्टर्स की, लाइक शिनचैन। अरे वाह, सुना प्लीज, सुना। अक्षय कुमार भी, ओए बेटे, चलो शुरू करो। सर शिनचैन की करो। हाँ करना मेरे भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट पर बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं, कहीं वो प्याज के साथ भरवा बैगन मत लाएं। इंस्पिरेशन पूछ रहे थे ना आप, ये इंस्पिरेशन है, हर एक बंदा ताली बजा रहा है, एक लेट होके बाद में भी बजा रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई, ये इंस्पिरेशन है। बस अब इसे कहीं ना कहीं लगने लगेगा यार मुझे ऐसे वॉइस एक्टर बनना, वॉइस एक्टर भी होते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स आजकल, अमेजोन आजकल इतनी सारी ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्यों? दूसरे जो स्टेट में मूवी बनी हुई है, मलयालम मूवी बनी हुई है, अब उन्हें वो रिलीज करनी है हिंदी में भी, यहाँ पे इन लोगों का काम आता है, वॉइस एक्टर का काम आता है, बहुत बढ़िया भाई, कुडोस टू यू, वेरी गुड, जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए, वेरी गुड। अरे एक मिनट, मिमिक्री करके छोड़ दिया, क्वेश्चन तो पूछ। अपना टैलेंट दिखा के भूल गया। आई लव यू मेरे भाई, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है यार, बहुत बढ़िया यार, जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, अपने लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत। thank you so much, sir, and thank you to everyone who's been in this session. All good things do come to an end, and so does this wonderful session. I would like to welcome Mr. Madhav Sharma to please come to the stage and deliver a vote of thanks to bring this session to a close. मज़ा आया? मेरे को रिस्पॉन्स में ही मज़ा नहीं आया, फिर से पूछता हूँ, मज़ा आया? So a huge thank you to RJ Mohit from Radio Mirchi for taking out the time and sharing his invaluable experience and insights with us today. Sir, your session your session is all about experimenting with creativity, navigating with the niche changes, and of course overcoming the industry challenges with your experience and enlightenment. So we appreciate how you candidly spoke about your struggles in the radio industry and offering a practical advice for the students to how to stay focused. Thank you so much, sir. I would like to thank the head of the department, Professor Dr. Parul Mehra, Garima ma'am, Vishal sir, Chetna ma'am, Lakshita ma'am, Yogesh sir, the technical team, DME TV, DME Frames, the anchors for the day, the hospitality team, everyone. Thank you for joining us, and we'll see you tomorrow with another media personality, with another new session for your orientation. Thank you so much.